رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ السلام علیکم جی، فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں اب آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کی آغاز میں اپیل ہے آپ سے کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجیے اور بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ آپ ہمیں اپنے ٹیلی ویژن سیٹ پہ تو مانیٹر کر ہی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہماری نشریات آپ کے سامنے ہیں، لیکن اگر آپ اینڈرائڈ سیٹ پہ یا موبائل پہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ تو پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، یوٹیوب کے لنک میں ہمیں واچ کیجیے، یا کسی بھی براؤزر میں live.pegham.tv لکھ کر سرچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، کال کا طریقہ نہایت آسان ہے، آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر جو نمبر ڈسپلے پہ آ رہا ہے آپ یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کال آپ نے چھوٹی کرنی ہے، ایک وقت میں ایک سوال کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں، کیونکہ پیغام ٹیلی ویژن الحمدللہ نہ صرف پاکستان کے طول و عرض بلکہ دنیا کے کونے کونے میں اس وقت اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو ہمارے وہ ویورز جو ہمیں پاکستان سے باہر سے بھی کالز کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی پھر پرابلم ہوتی ہے، سو پلیز ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ٹیلی ویژن کا والیوم بند رکھیے اور ایک وقت میں ایک سوال کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ آپ ہمیں یہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں یہاں پہ اپنے لائیو کوسچنز ہمیں تھرو کر سکتے ہیں، ہم اس کا رپلائی بھی کریں گے۔ معزز مہمان جو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، نعت خواں ہیں شعیب الرحمان حسانی صاحب، ان کو ویلکم کریں گے۔ جی السلام علیکم شعیب صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے جی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ بھی خیریت سے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، آغاز کرتے ہیں ٹرانسمیشن کا اور شعیب الرحمان حسانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ نعتیہ کلام انشاءاللہ میرا پلیز سنائیے سنائیے۔ اندازہ کیا کرو گے نبی کے مقام کا، 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 سوچوں سے بالا رتبہ ہے خیر الانام کا، سوچوں سے بالا رتبہ ہے خیر الانام کا، ان دھڑکنوں کے ساز کی پر کیف ہے صدا، ان دھڑکنوں کے ساز کی پر کیف ہے صدا، چھیڑا ہے ذکر کس نے، چھیڑا ہے ذکر کس نے مدینے کی شام کا، چھیڑا ہے ذکر کس نے مدینے کی شام کا، سوچوں سے بالا رتبہ ہے خیر الانام کا، پہلے تو احترام کو خاطر میں لائیے، پہلے تو احترام کو خاطر میں لائیے، کیجئے پھر اہتمام درود و سلام کا، سوچوں سے بالا رتبہ ہے خیر الانام کا،
اور اے امتی لحاظ حدود و قیود رکھ، اے امتی لحاظ حدود و قیود رکھ، بتلا گئے وہ فرق حلال و حرام کا، بتلا گئے وہ فرق حلال و حرام کا، سوچوں سے بالا رتبہ ہے خیر الانام کا، اور اونچا ہوا ہے نام اسی کا جہان میں، اونچا ہوا ہے نام اسی کا جہان میں، جس نے ادب کیا ہے محمد کے نام کا، جس نے ادب کیا ہے محمد کے نام کا، سوچوں سے بالا رتبہ ہے خیر الانام کا۔ اور سب سے میٹھا اور خوبصورت شعر آپ کی نظر ہے کہ شہد و گلاب ان کے تکلم کی ایک جھلک، شہد و گلاب ان کے تکلم کی ایک جھلک، قائل زمانہ ہو گیا ان کے کلام کا، قائل زمانہ ہو گیا ان کے کلام کا، سوچوں سے بالا رتبہ ہے خیر الانام کا، اندازہ کیا کرو گے نبی کے مقام کا، اندازہ کیا کرو گے نبی کے مقام کا، سوچوں سے بالا رتبہ ہے خیر الانام کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ شعیب الرحمان حسانی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ آمین، جزاک اللہ۔ بٹی صاحب، کوئی گفتگو کا آغاز آپ کے پاس ہے، پھر مجھے بہت سی گفتگو کرنی ہے۔ جی انشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دامی بھائی، کل یا پرسوں کے ہمارے پروگرام میں جی ایک مسئلہ ڈسکس ہوا تھا کہ جس بندے کو قرآن مجید ابھی پڑھنا نہیں آتا تو وہ کیا کرے؟ جی، تو ہم نے اس کو بتایا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو نماز میں بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ کلمات پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو اگر اس بندے کو اللہ توفیق دے، ہمت دے، تھوڑی سی اور وہ کوشش کرے، ابھی پورا قرآن نہیں پڑھنا جانتا تو سورہ اخلاص تو پڑھ لے، سورہ اخلاص سیکھ لے، تو پھر بھی اس کی قسمت سنور سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، جی میں ابھی تمہارے سامنے 10 پارے تلاوت کروں گا۔ اب صحابہ کرام کی تو شوق کی کیا کیفیت ہوگی کہ 10 پارے آمنہ کے لال کی زبان مبارک سے سننے کو ملیں گے، سارے اکٹھے ہو گئے فٹافٹ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، جی یہ ایک اکیلی سورت 10 پاروں کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ 3 بار پڑھ لے تو مکمل قرآن کا ثواب تو اس کو بھی مل سکتا ہے۔ جی تو لہذا وہ ناظرین، وہ بزرگ جو ابھی قرآن نہیں پڑھ پائے، نہیں پڑھ سکتے، زبان پر نہیں چڑھتا،
تو نماز پڑھتے ہوں تو سورہ اخلاص تو ہر کوئی یاد کی ہوتی ہے، تو اس کو پڑھیں جب دل کرے پڑھیں۔ مجھے ایک بزرگ بڑے رازدارانہ انداز میں کہتے ہیں اگر میں روزانہ 100 دفعہ پڑھ لوں تو ماشاءاللہ، تو میں نے کہا اتنا آہستہ آہستہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ کوئی دوسرا نہ سن لے تو جس طرح کو بندہ محنت کرے گا اللہ تو اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ اتنا ہی نوازتا ہے۔ تو یہ سورۃ اخلاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 10 بار پڑھ لے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ بہترین نسخہ ہے ان ناظرین کے لیے جو بھی قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے اور وہ زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہیں، تو وہ دن میں رات میں کسی بھی وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اس نیت سے کہ اللہ ان کو بھی اجر و ثواب دے، تو انشاءاللہ ان کا بھی نامہ مال نیکیوں سے بھر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی افطار میں رمضان اور قرآن ہی تھا، ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ یہ مہینہ ہے ہی قرآن مجید کا، قرآن کریم کا، تو جڑ جائیں اس سے، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں۔ ایک لائیو کالر ہے جی، آج کے پہلے کالر، ان کو شامل کرتے ہیں۔ امانت علی صاحب بصیر پور سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی امانت صاحب شکریہ کال کرنے پہلے کا۔ تو نوید لاحق کو سلام کرتے ہیں، جی اور اس کے بعد مفتی صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میرے دوست کو سلام بلانا حکیم دروی ہے، وہ آپ کا بہت فین ہے۔ جی جزاک اللہ، جی جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی حکم کیجیے۔ میرا پہلا سوال ہے، ہلو جی جی بولیے۔ ٹی وی کا والیوم اگر آن ہے تو وہ بند کر دیجیے پلیز۔ یہ ٹی وی تو ہے ہی نہیں ادھر۔ ٹھیک ہے چلیں، بولیے پھر آپ۔ 30,000 میں تنخواہ ہے سر، اچھا جی، تو برکت نہیں ہے، تو وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں۔ اچھا 30,000 تنخواہ ہے، برکت نہیں ہے، وظیفہ پوچھنا چاہتے؟ جی میں گورنمنٹ ہائی اسکول روہیلا تیجے کا مالی ہوں۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا جی۔ آمین آمین آمین۔ 30,000 میں سادگی کے ساتھ بھی جئیں تو جن چیزوں کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں ان میں واقعتاً 30,000 میں گزارا بہت مشکل سے ہے۔ جی تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تہجد کے ٹائم جب مالک وہ گنج بخش خزانے بانٹ رہا ہوتا ہے تو یہ اس سے دعا کریں کہ اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما دیں۔ برکت بھی چاہیے اور اضافہ بھی چاہیے۔ 30,000 میں راشن خریدے، بجلی گیس پانی کے بل دے، گھریلو ضروریات پوری کرے، ایک غریب آدمی جائے تو کدھر جائے؟ اور اگر گھر بھی کرائے کا ہو بھٹی صاحب؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی جان جمعے والے دن اسی طرح کا ایک کاریگر میرے پاس آیا، وہ کہتے ہیں سر لوگ مر گئے ہیں، جینا مشکل ترین ہو گیا ہے، لوگوں کی 6,000، یہ تو کہہ رہے ہیں 30,000، وہ کہتا ہے میرے پاس ایک فرنیچر پالش کرنے والا ہے وہ 6,000 پر کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو 6 اور 30 اور 50,000 بھی ہو تو گزارا یقیناً مشکل ہے، مشکل ترین ہے۔ مشکل ترین ہے۔ سبزیاں پھل جو ضرورت کی چیزیں وہی بہت مہنگی ہیں۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اور بھائی بھی تہجد کے ٹائم اٹھ کر دعا کرے کہ اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرما دے، برکت ڈال دے، تو پھر انشاءاللہ مشکلات آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے جی، اگر کوئی شخص 23 رمضان المبارک کو وفات پا گیا اور اس دن کے مطابق جو ہمارا انگلش کیلنڈر ہے وہ 26 مارچ تقریباً بنتا ہے، تو ابھی چونکہ ڈیز کا ڈیفرنٹ آ رہا ہے تو اب اس کو وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ڈے کے حوالے سے یاد رکھیں یا وہ اس کیلنڈر کے ڈے کے حوالے سے یاد رکھیں؟ یاد کس لیے رکھنا ہے؟ وفات کا دن وہ کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، جب میرے پاس جو کویسچن آیا جی۔ تاریخ وفات لکھنی ہے تو دونوں لکھ لیں، جی انگلش کیلنڈر کے حساب سے بھی لکھ لیں اور رمضان کی بھی لکھ لیں کہ وہ 23 تھی یا 24، کیونکہ رمضان تو ہر سال تبدیل ہوتا رہے گا نا، جی جی 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے اسلامی کیلنڈر میں۔ تو اگر وہ یادگاری کے طور پر تاریخ لکھنا چاہتے ہیں تو دونوں لکھ لیں، کیا حرج ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ جو ڈفرینس ہے وہ تو بڑھتا رہے گا، کم ہوتا رہے گا، چینج ہوتا رہے گا، تو جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کے مطابق وہ دن رکھ لیں، ادروائز جو ہمارے دوسرے اور اگر مقصد ہے کہ سالانہ برسی وغیرہ منانی ہے تو اسلام میں اس کا تو کوئی کنسیپٹ ہے نہیں، ٹھیک ہے تو اس لیے اتنا تکلف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ ڈاکومنٹیشن کے لیے اس کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو ہمارے ہاں تو شمسی کیلنڈر ہی چلتا ہے نا، ہاں جی ہمارے ہاں تو قمری چلتا ہی نہیں ہے، اس لیے پھر وہ انگلش کیلنڈر جو ہے اسی کے ساتھ تاریخ لکھ لیں۔ اوکے۔ ایک اور لائیو کالر ہیں جی، تنویر احمد صاحب کوٹ ادو سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم تنویر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی نوید بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی جی میرے بھائی الحمدللہ، فرمائیے۔ اچھا سر جی، یہ اگر عشاء کی نماز چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو تہجد کے ٹائم پڑھی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا، ابھی جواب لیتے ہیں سر۔ ٹھیک ہے سر۔
नमाज पहली बात तो है कि बिला उधर छूटनी नहीं चाहिए। उधर क्या है जो बड़े बड़े शरीयत की नज़र में है जी, कि कोई बंदा बीमार था, वो नहीं पढ़ सका, उसके अंदर इतनी सकत नहीं थी कि वो पढ़ सके। जी, कोई बंदा सोया हुआ था, उसको किसी ने जगाया ही नहीं है। कोई बंदा बेहोश हो गया और उसको होश ही उस टाइम आया कि नमाज का वक्त गुजर चुका था। तो ऐसी हालत में जिस वक्त उसको होश आए, जिस वक्त उसको याद आए, उसको फौरी नमाज पढ़नी है जी, उसको बिला वजह फिर मज़ीद डिले नहीं करना है कि अगली नमाज के बाद पढ़ूंगा। यह हमारे यहाँ रिवाज है कि इशा की नमाज रही है तो अगले दिन इशा के साथ ही पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो नमाज जो गुजर गई, उसका वक़्त निकल गया है, तो जैसे ही आपको याद आया है, आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, फ़ौरी पढ़ना है, ख़्वाह वो ममनुआ औक़ात ही क्यों ना हो। असर के बाद भी पढ़ेगा, फजर के बाद भी पढ़ेगा, एंड ज़वाल का टाइम भी हो तो भी फ़र्ज़ नमाज उसमें पढ़ेगा, क्योंकि उसको जाग ही अब आई है, उसको पता ही अब लगा, याद ही उसको अब लगा कि मैंने तो नमाज रह गई है, फ़ौरी वुज़ू करे और नमाज शुरू कर दे। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इदरीस अहमद साहब पूछते हैं कि क्या नॉन मुस्लिम को गिफ्ट दे सकते हैं अगर वो साथ काम करते हो? जी, ये तो हमने कल परसों जी तफसील से जिक्र किया था जी जी कि गिफ्ट लेना और देना दोनों ही जायज़ हैं। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको याद हो तो हमने कहा था कि आपने एक बेहतरीन जोड़ा ख़रीदा था जो 30 के करीब ऊँट देकर आपने ख़रीदा था, इतना महंगा जी। तो क्योंकि आपको भी इतना ही महंगा सूट उन्होंने गिफ्ट किया था तो आपने भी जवाबन उसको इतना ही किया था। तो जो भी आपके को वर्कर हैं, आपके साथी हैं, उनको गिफ्ट देना और लेना जायज़ है, कोई अर्थ। ठीक है। नईम अहमद साहब हैं सिंध से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया कॉल का। नईम साहब फरमाइए। शेख साहब, रिक्वेस्ट ये थी कि हमारे एक दोस्त हैं, वो सांस का प्रॉब्लम है, वो रोज़े रखते हैं जी, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर इनहेलर इस्तेमाल कर लेते हैं जी। तो उस सूरत में क्या उनका रोज़ा ख़त्म हो गया? ठीक है, ठीक है क्या जी, वो कंटिन्यू रखें उसको? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, रोज़े के दौरान सेहत ख़राब हो जाती है, इनहेलर सांस इस्तेमाल का मसला। करना जी, जायज़ है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। ये ना को खुराक है खाने की और ना ही ये पीने की है। तो ये सांस को बहाल करने की एक गैस ही है ना, जो आमतौर पर हम हर वक्त इनहेल कर ही रहे हैं, तो ये भी एक तरह की गैस ही है, इसको इनहेलर के ज़रिए लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी। आगे पूछा क्या है जी, इदरीस अहमद साहब ये पूछते हैं, नहीं, अब्दुल जुल्फ़िकार अली, अब्दुल्ला हाँ जी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं सियालकोट से हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कुरान पाक में मैंने जो ज़्वाद का लफ्ज़ है वो किस तरह पढ़ना है? ये ज़्वाद जो है ये कुर्रा कराम के नज़दीक मुश्किल तरीन मखारज में से एक मखरज है। अच्छा, इसकी अदायगी कुर्रा कराम के नज़दीक सबसे मुश्किल है जी, क्योंकि ये ज़्वाद जो है ज़ा, ज़्वा, ज़ाल, इन सब के साथ मिल के जब आता है ना तो मुश्किल हो जाता है। इसको सीखने में भी टाइम लगता है और इसकी अदायगी में भी टाइम लगता है। बहरहाल कोशिश अपनी करनी चाहिए, बाकी जो कमी कोताही रह जाएगी वो अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। और किसी अच्छे मुजव्विद कारी साहब के पास बैठकर तो इसकी मशक कर लें। ठीक है, यानी हम एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जी। ये पढ़ा जाए, जो बाकायदा हमारे यहाँ तरबियत क्या दी है, जाए। हमारे यहाँ देसी हालिस का निकाला गया है ना कि अगर ज़्वाद की आपको सही तरीके से मखरज आप नहीं निकाल सकते तो आप इसको दाल पढ़ लें, बोला दालिन, ठीक है, तो वो गलत है, टोटली गलत है। ठीक है, ठीक तो है। आप किसी अच्छे कारी से ज़्वाद का मखरज सीखें, उसको अदायगी सीखें, और अगर सीखने के बाद भी कमी कोताही रह जाए तो वो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला है। ठीक है जी। हाकिम अली साहब हैं, मैंने इसलिए इनका स्पेशल इलेबरेट करके नाम लेके इन्होंने कोई 8-10 मैसेजेस भेजे हैं मुझे। अल्लाह आपको सेहत दे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हमेशा खुश रहो, सुभान अल्लाह, आपका शुक्रिया, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह बरकत दे जी ऐसे भाइयों को माशाअल्लाह। ट्रांसमिशन देख के इतनी मोहब्बत का एहसास और इतनी और ये मोहब्बत दुआएं मिलती ही है। हमारा सरमाया है जी, माशाअल्लाह। बेशक ऐसी, ठीक है, मोहब्बत के साथ साथ दुआएं मिलती है ना, ये बहुत कीमती सरमाया है। कीमती सरमाया है। सर आगे पूछा कि क्या लड़कियां गोल दामन वाली कमीज, कफ कॉलर वाली कमीज पहन सकती हैं? रूल ये है मर्द और औरत के लिबास में जी कि वो एक दूसरे के मुशाबे ना हो। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन और मर्द दोनों पर लानत की है जबकि मर्द ऐसा लिबास पहने जो ख़वातीन पहनती हैं, या ख़ातून किसी इलाके में हो और वहाँ जो मर्द लिबास पहनते हैं ख़ातून वैसा ही उनके साथ मिलता जुलता लिबास पहने।
तो हर मुआशरे का अपना उर्फ है, वहाँ का अपने रिवाज हैं, कपड़े का लिबास का स्टाइल अपना अपना है। तो हर इलाके में मर्द और औरत के लिबास में यकीनन बिल्कुल क्लियर फ़र्क है जी। तो इस्लामी लिबास के अंदर बेसिक चीज़ है सतर का छुपा हुआ होना जी। और औरत का पूरा जिस्म सतर है तो उसका पूरा जिस्म पर्दे में होना चाहिए। और मर्द हज़रात के लिए सहूलत है कि वो कोई किसी लिबास जो सतर को ढांप ले वो पहन सकते हैं। अलबत्ता वो लिबास जो किसी इलाके में मर्दों के लिए ख़ास हो, अगर वैसा ही औरत पहनेगी तो ये लानत का बायस होगा। और औरतों के साथ जो मखसूस लिबास है, अगर वैसा ही मिलता जुलता लिबास कोई मर्द पहनेगा, औरतों जैसी चाल डाल इख्तियार करेगा, तो उस पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और उसके अलावा लिबास जो भी सातिर हो, जिस्म को छुपाने वाला हो, खूबसूरती का बास हो, पहन सकते हैं। ठीक है। वकास सिद्दीक साहब हैं चकवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। फरमाइए वकास भाई। कैसे मिजाज है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल है कि मदरसे के जो मुहतमिम होते हैं या मदरसे के जो नाज़िम आला होते हैं या नाजिम होते हैं, जो मदरसे के अंदर पकाई जाने वाली कोई चीज़ खाना वगैरह जो ख़ुसूसन बच्चों के लिए बनाया जाता है, या मदरसे के अंदर जो एक मतलब बकरे का गोश्त आ जाता है, तो वो क्या मुहतमिम अपने घर में बेच सकता है? क्या ये शरीयत में जायज़ है? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी मदरसे के लिए पका, बच्चों के लिए पका, तो क्या वो घर भेजा जा सकता है? देखें, मदारस में अमूमन लोग सदक़ात और ज़कात का माल देते हैं जी। बच्चों के लिए, जो बच्चे वहाँ गरीब पढ़ रहे हैं जी तो उनके लिए होता है। तो यतीम और गरीब के माल के बारे में कानून शरीयत ने ये दिया है कि मन कान फ़कीरन फलियाकुल बिल मारूफ़, कि अगर यतीम आपकी परवरिश में है और माल यतीम का है और आप अमीर हैं तो फिर रुक जाएं, ना खाएं। अगर आप मुस्तगनी हैं, अल्लाह ने आपको अपनी मालो दौलत दिया हुआ है, तो उसके माल में से कुछ ना खाएं। और अगर आप ख़ुद भी ज़रूरतमंद हैं, गरीब आदमी हैं, तो उसके माल में से मारूफ तरीके से खा सकते हैं। अब मदारस के जो मुहतमिम हजरात हैं, अगर तो वाकई वो भी मुस्तहिक हों, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, तो वो भी उसमें से खा लें, कोई अर्ज नहीं। और अगर अल्लाह ने उनको अपने वसाइल दिए हुए हैं तो फिर वो उधर से ना खाएं। इमरान अब्बासी साहब हैं आज़ाद कश्मीर से। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपसे ये पूछना था मुफ्ती साहब से कि आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस वगैरह भी हो रहे हैं और हर बंदा जो है वो कहता है इंश्योरेंस करवाना। मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनी है जी, जिसमें स्टेट लाइफ भी आता है, दीगर भी आते हैं। तो मैं मुख्तसर ये सवाल करना चाहूँगा कि किस तरह से पता चलेगा कि हम अगर इंश्योरेंस करवाते हैं ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं है? दूसरा ये है कि किस से इंश्योरेंस करवानी चाहिए? तो नहीं होता है कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है। तो बराए मेहरबानी इसके हवाले से हलाल है या हराम है, आदमी इसके हवाले से जो है ना मालूमात शेयर करते हैं। मेहरबानी आपकी। जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, आप पहले सवाल में थोड़ी सी एडिशन करनी है जी कि बाज़ अब ऐसा भी होता है कि कोई मालदार आदमी गिफ्ट करता है मदारस को, वो कहता है जी मदारस के साज़ा कराम भी इसमें से एंजॉय करें और आप भी करें और बच्चे भी करें, तो वो उमूमी एक वो अपनी तरफ से गिफ्ट बेचता है। तो ऐसी सूरत में मदरसे का मोहतमा भी खा सकता है, मदारस के साज़ा भी खाएं, बच्चे भी खाएं। तो वो एक दावत होती है या उनकी तरफ से तोहफा होता है, तो उसमें फिर ये तकसीम नहीं होगी जो हमने पहले की है। ठीक है। उसके बाद भाई का सवाल है इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस हलाल है या इंश्योरेंस किसी किस्म की भी हो, हमारे यहाँ हमेशा लफ्ज़ इस्लामी साथ लगा देते हैं जी। इस्लामी इंश्योरेंस, इस्लामी बैंकिंग, इस्लामी फ़लाँ। तो इसके लफ्ज़ इस्लामी लगाने से कतन कोई इस्लामी नहीं बन जाता है। तो ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये सारी के सारी सूदी हैं, सूद इनके अंदर टोटली भरा हुआ है और सूद से ही वो अपने कस्टमर को प्रॉफिट देती हैं। तो लिहाजा ये हराम ही हैं, कोई हलाल नहीं है। और एक मुसलमान शख्स को इन कंपनी से बच के अपना बिजनेस करे या किसी के बिजनेस में शराकत करे और अपने पैसे वहाँ इन्वेस्ट करके जायज़ हलाल कमाई कर सकता है। ठीक है। आगे कहते हैं कि जी प्रोग्राम देखकर एहसास होता है कि उलमा हजरात कितना बड़ा असासा हैं, वरना अवाम तो ज़कात के मसाइल में उलझ कर रह जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी किसी नेमत से कम नहीं है। अल्लाह पाक दोनों के लिए खैर व बरकत करे जी। आमीन, जज़ाकल्लाह आमीन। अच्छा आगे सैयद आबिद साहब है। सैयद आबिद साहब, कल भी आपसे हमने गुजारिश की थी कि वो जो 6 माह आप सफरी जहाज़ के सफ़र वाला आपने सवाल किया था कि नमाज कौन सी पढ़ेंगे, तो हम इसका जवाब दे चुके हैं। तो आप काइंडली वो ट्रांसमिशन दोबारा देख लीजिएगा जी।
راجہ عزیر صاحب ہیں چکوال سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم راجہ صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. راجہ صاحب فرمائیے. سر میں چکوال سے بات کر رہا ہوں. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی جو قسط میں سامان لیتے ہیں ہم, کیا وہ سود میں آتا ہے؟ کیا لیتے ہیں آپ؟ جو ہم کوئی سامان لیں قسطوں پہ لیں تو کیا وہ سود میں آتا ہے کچھ ہم لے تو؟ جی بالکل آتا تو سود میں, لیکن پھر بھی کال کرنے کا شکریہ, جواب لیتے ہیں. انسٹالمنٹ پہ جو ہے وہ سود میں ڈائریکٹ نہیں آتا, اس کو سود بنایا جاتا ہے. جی ایک انسٹالمنٹ کی صورت یہ ہے کہ پہلے سے طے کر لیا جائے کہ بھائی یہ نقد چیز ₹1,00,000 کی ہے اور قسطوں میں آپ کو 1,20,000 میں ملے گی. جی اور کسٹمر کہتا ہے جی میں اس کی 4 قسطیں کر کے دوں گا, ٹوٹل رقم آپ کو. یہ طے ہو گیا ہے, اس پر مزید کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوگا. تو یہ کاروبار جائز ہے, یہاں تک بالکل درست ہے. اگر اس پر اضافی شرط لگا دی گئی کہ بھائی جان آپ نے قسطوں پر یہ چیز لئی ہے 1,20,000 میں, جی, اور جیسے ہی آپ کی پہلی قسط لیٹ ہوگی تو آپ کو ₹10,000 فائن بھی دینا پڑے گا. اور اگر 2 قسطیں لیٹ ہوگی تو یہ 20 ہو جائے گا. اور اگر 3 قسطیں لیٹ ہو گئیں تو ہم آپ کی چیز بھی واپس لے آئیں گے اور جتنی قسطیں ہم نے دی تھی وہ بھی گئیں. تو اگر ایسی شرائط ساتھ موجود ہوں تو اس کو سود کہتے ہیں, یہ حرام ہے. اور اگر ایسی کوئی فائن اور جرمانے کی شرط ساتھ نہ ہو, صرف اتنا ہی ہو کہ نقد میں وہ سستی مل رہی ہے اور ادھار میں اس کو مہنگی مل رہی ہے, تو پھر یہ کاروبار جائز ہے. ٹھیک ہے. راؤ سکندر صاحب ہیں فیصل آباد سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی راؤ صاحب شکریہ کال کرنے کا, پوچھئے. جی سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو پیغام ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ اللہ پاک نے پاکستان میں ایسے چینل ہمارے لیے باعث مسرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چینلوں کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنے کا آپ لوگوں کو اور ہم سب کو موقع دیا. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. تو ایک تو میرا جی سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالے رنگ کی جو جوتی ہے وہ پہننے سے مصیبتیں آتی ہیں. اچھا جی. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ نماز عشاء کے بعد جب ہم فرض پڑھتے ہیں تو فرض پڑھنے کے بعد جو 4 سنتیں اکٹھی پڑھتے ہیں ان کا درجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی راؤ صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کا. گزارش یہ ہے کہ ایک وقت میں اگر ایک سوال کریں گے تو سب کے لیے بہتر ہوگا. 2 کوسچن کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کا حق مارا گیا. اینی وے تھینک یو ویری مچ. سر پہلا سوال. سیاہ رنگ کا جوتا پہنے تو مصیبتیں آتی ہیں. جی. اور اگر پورا سوٹ سیاہ پہنا ہو تو آپ نے سیاہ کلر پہنا ہے, سر نے سیاہ کلر پہنا ہے, آپ کا سارا اسٹوڈیو سیاہ ہے, سارا اسٹوڈیو سیاہ ہے, میں کئی دفعہ پورا ڈریس ہی سیاہ پہنتا ہوں. اور جو پوری کمپنیاں سیاہ لباس اور جوتے بنا رہی ہیں وہ تو بچ گئی کہ نہیں, کہ بچ پائیں گی؟ تو یہ ہمارے ہاں یہ جو مختلف قسم کے اس طرح کی بےہودگیاں رواج پا گئی ہیں نا, ایسے ہی سوشل میڈیا پر رنگ برنگی فلاں کا قول ہے فلاں کا قول ہے, یہ بعض دفعہ تو بد نصیب نیچے حدیث نبوی بھی لکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو صحابی رسول کہتے ہیں آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کا امامہ شریف تھا. جی. تو سیاہ رنگ کا لباس پہننا اگر کوئی خاص رسم یا رواج کے طور پر نہ ہو, جی, جوتا ہو, امامہ ہو, رومال ہو, لباس ہو, کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں مشہور ہے یہ سب بےہودہ باتیں ہیں, فضول باتیں ہیں, کوئی بھی چیز اس میں ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نماز عشاء کے حوالے سے نماز عشاء کے بعد جو 4 رکعت ہیں وہ 2 کر کے پڑھ لیں یا 4 کر کے پڑھ لیں. اگر تو نماز عشاء کا حصہ پڑھ رہے ہیں تو وہ 2 سنتے ہیں صرف. جی. اور اگر یہ وہ ان 4 کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے کہا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے اور سونے سے پہلے تو وہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ لیلۃ القدر میں پڑے ہوئے 4 نفلوں کے برابر ہو جائیں گے. یہ ان کی فضیلت اور شان ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا شعیب الرحمان حسانی صاحب, آپ کہنے کا بہت شکریہ. اور بائی دی وے جو آپ نے بلیک سوٹ پہنے ہیں آپ کو کافی سوٹ بھی کرے بلیک کلر کی کیپ کے ساتھ بھی, تو آپ کے آنے کا شکریہ. لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. ہاں جی. اور بٹی صاحب کے بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی ہم بہت سے سوال اور آپ کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر,
रब का आया खास एक मेहमान फिर। रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर। रब का आया खास एक मेहमान फिर। फैज़ान रमज़ान ब्लेस्ड नाइट स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे एक दफ़ा फिर। सवाल और जवाबात का सिलसिला जारी है। आप हमें कॉल कर रहे हैं, अपने कमेंट से अपनी राय से हमें आगाह कर रहे हैं। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, एक और सवाल हमें मौसूल हुआ है। मोहम्मद साद लिखते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दिल्ली से हमें मैसेज लिख रहे हैं, इंडिया से। लिखते हैं, मुफ्ती साहब, नमाज तरावी की एक ख़ास दुआ पढ़ी जाती है कुछ मसाजिद में, क्या ये दुआ पढ़नी चाहिए? वो जो नमाज तरावी की दुआ बाकायदा फ्लेक्स बनाकर मस्जिदों में लटकाई होती है, वो किसी बुजुर्ग ने तैयार कर दी है। उसके तैयार करने वाले का नाम भी आज तक मालूम नहीं हो सका। ओह अच्छा। चाहे जाए कि वो मसनून हो। अच्छा। वो जिस भी बुजुर्ग ने बनाई उन्होंने अपने हिसाब से लोगों की सहूलत के लिए बना दी, लेकिन सुन्नत नबवी में तरावियों के दरमियान पढ़ने वाली ऐसी कोई दुआ साबित नहीं है। तो फिर क्या करें? सुनते हैं, रेस्ट करें, इस्तिगफार कर लें। कोई मसनून दुआ पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन ये जो मन गढ़ंत सी दुआ है इसको पढ़ने की कतन ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ना ही इनका तरावियों के साथ कोई तल्लुक़ है। ठीक है। एक लाइव कॉलर है ज़फ़र शेख साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मुफ्ती साहब से एक सवाल था। मुफ्ती साहब, ये है कुरान शरीफ के पढ़ने के मुतालिक है। मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसमें गलतियां होती है। तकलीफ तो नहीं होती है, कुरान मजीद हमारा ईमान है, हमारी किताब है। उसमें पढ़ने में ज़ेर ज़बर में पेश में काफ़ी मुझसे गलतियां हो जाती हैं। अब बुढ़ापे में करता हूँ तो मैं ज़्यादातर सुनता हूँ। कभी कोई जैसे कहीं भी कुरान शरीफ पढ़ने की जगह पे सुनता हूँ। मगर मेरा सवाल ये है कि एक तो सुनने के मुतालिक कुछ आप मुझे गाइड करें। दूसरा, अगर मैं किसी और लैंग्वेज में पढ़ूँ, अरेबिक ना पढ़ूँ, गलती से बचने के लिए, मैं सिंधी हूँ, सिंधी में कुरान मजीद मेरे पास है, उर्दू वाला भी है, तो क्या सवाब वही होगा? वो सही रहेगा? नहीं है रमज़ान शरीफ में मुझे सिर्फ डर ये होता है कि मैं वो पढ़ूंगा तो गलतियां मुझसे बहुत होंगी। जी ये मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब कॉल करने का। अभी जवाब लेते हैं। ये एहसास बड़ा अच्छी चीज़ है, बहुत खूबसूरत एहसास है, बहुत खूबसूरत है। तो हमारे ये भाई ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। कुरान मजीद के बेशुमार कोर्सेज हैं जो अहबाब करा रहे हैं जी। तो इनको ऑनलाइन किसी भी क्लास में हिस्सा लेकर कुरान पढ़ने की तालीम ले लेनी चाहिए। ठीक है। अगर वो भी मुश्किल हो तो माशाअल्लाह कुरान पैगाम टीवी से अल-मुसहफ़ अल-मुरत्तल के नाम से हमारा अदारा भी एक कुरान शाया कर चुका है जो ऐसे ही लोगों की ज़रूरत को पूरी करता है कि वहाँ कारी साहब एक एक लफ्ज़ करके पढ़ते हैं, फिर पास देते हैं, फिर सुनने वाला वो लफ्ज़ पढ़ता है, फिर अगला लफ्ज़, फिर अगला लफ्ज़, फिर पूरी आयत भी वो पढ़ते हैं और पीछे पीछे सुनने वाला भी पढ़ता है। तो गलतियों की इस्लाह के लिए वो मुसहफ़ ले लें, उसका ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सहूलत के मुताबिक जब चाहें जौन सी सूरत चाहें वो सीख लें। सीखने में तो अब इतनी आसानियां हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इन बुज़ुर्गों को वो कुरान मजीद सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा सवाल उनका यह है कि क्या मैं सिंधी ज़बान में, उर्दू ज़बान में, इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ? पढ़ने में तो कोई अर्ज नहीं। आप कोई किसी भी लैंग्वेज में उसका तर्जमा तफसीर पढ़ें, लेकिन अरबी पढ़ेंगे क्योंकि कुरान अल्लाह ने बिलिसान अरबी मुबीन, अल्लाह कहते हैं हमने अरबी वाज़ेह ज़बान में इसको नाज़िल किया है। तो कुरान की असल ज़बान जो है वो अरबी है। अरबी पढ़ेंगे तो एक हरफ के 10 नेकियां मिलेंगी। अगर आपने उसका तर्जमा पढ़ा है तो वो एक हरफ पर 10 नेकियां नहीं हैं। तो आपने अगर नेकियां अल्लाह से लेनी है तो कुरान ही पढ़ना पड़ेगा। और अगर वो समझते हैं कि कुरान पढ़ते हुए वो अटकते हैं जी, तो ये तो उनके डबल अजर का सवाब का बायस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाज़ी यक़रउल कुरान व यततअतउ फ़ीह, कि जो बंदा कुरान पढ़ता है और अटकता है, उसकी ज़ुबान में लुकनत है या पढ़ने में मुश्किल है जी, तो उसको अल्लाह ताला डबल अजर सवाब अता फरमाते हैं। ठीक है। तो इसलिए इनको घबराना और परेशान नहीं होना चाहिए। ये पढ़ते रहें और कुरान मजीद के जितने भी ऐप हैं कुरान सिखाने वाले, उनमें से कोई एक ऐप डाउनलोड करके तो थोड़ा थोड़ा करके कुरान को सीखना शुरू करें, तो ये उधर इनका थोड़े अरसे बाद खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी। एक लाइव कॉलर है उवैस साहब लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब।
جی وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے موقع دیا. مفتی صاحب سے میں سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان دنیا پہ جس طرح بہت ظلم و بربریت ہے، بلکہ نسل کشی ایک چل رہی ہے. آپ فلسطین کو دیکھ لیں، جس طرح وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر پا رہا. اس صورتحال میں آپ یہ بتائیں کہ ہمارا مسلمانوں کا کیا معاملات صرف عبادات اور انہی انفرادی چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنس کے رہ جانا، اور مطلب روزہ کہ چلیں یہ معاملات تو بہت ضروری ہیں، لیکن کیا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ ہم اپنی انفرادی سطح سے، سوچ سے، مفاد سے، فرقہ واریت سے اٹھ کے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو سپورٹ کریں؟ اور جبکہ مسلمان حکمران اس وقت اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ہمیں چینلائز نہیں کر پا رہے اور ہمیں گائیڈ نہیں کر رہے کہ ایسی صورتحال میں، ایسے نظام میں ہمیں کس طرح ان کی ہیلپ کرنی ہے. جی ٹھیک. تو اس میں کیا فتویٰ یا کیا گائیڈ لائن دیں گے کہ مسلمان کیا کریں اجتماعی طور پہ کہ اس ظلم کو، اس بربریت کو روکیں، جبکہ حکمران طبقہ اور ہماری سوچ میں بہت فرق ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ویسا بہت شکریہ کال کرنے کا، ہائی لائٹ کرنے کا بہت شکریہ. ایڈریس کریں گے بھٹی صاحب. جی نظامی بھائی، اگر آپ ایک ڈرائیور کو کچن میں داخل کر دیں جی اور اسے کہیں بھئی آج آپ نے افطاری کا سارا سامان تیار کرنا ہے، جی فروٹ چاٹ، سموسے، نگٹس، ہر چیز تم نے آج تیار کرنی، جی وہ آپ کی شکل دیکھے گا کہ سر میں ڈرائیور ہوں، آپ مجھے کدھر بھیج رہے ہیں؟ ڈرائیور کو کچن میں اور شیف کو آپ پکڑائیں چابی اور کہیں پکڑو یہ گاڑی اور اس کو فوراً فلاں جگہ جا کے شفٹ کر کے آؤ. وہ کہے گا سر میرے ہاتھ میں تو چمچ مسالے دیں، یہ کیا دے رہے ہیں؟ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ڈسٹرب ہوں گے، دونوں کام ہی خراب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے جی. افطاری کے ٹائم آپ کہیں بھائی لاؤ فروٹ چڑھ کے دو، سر مجھے بنانی نہیں ہوتی، میں کیا کروں، یہ سیب یہ کیلیاں کھا لو. کچھ نہیں بنائے گا وہ، اور اگر بنائے گا تو یقیناً بہت بد مزہ، بہت بری حالت کرے گا وہ آپ کے کچن کی. اور اگر آپ شیف کو، جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی، اس کو آپ اپنی پجاروں کی نئی گاڑی کی چابی دے دیں تو وہ کہاں تک جائے گا؟ وہ جائے گا ہی نہیں. جی. اور اگر اس نے زبردستی تھوڑی وہ چلائی تو وہ دیوار میں ہی مارے گا. جی. بے عین ہی ہمارے اس مسئلے کا حل بھی ہے. مسلمان 50 سے زائد ملک ہیں، دنیا کے بہترین افواج ہمارے پاس ہیں جن کا ماٹو ہی جہاد ہے کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، جہاد کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں. دنیا کا بہترین اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے. تو یہ کام ان کا ہے نا، ان کو کرنے دینا. اب کرنا کس نے ہے؟ فوج نے. اور کرانا کس نے ہے؟ حکومت نے. عام بندہ کیا کرے؟ عام بندے کے لیے ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو اسلحے کی ضرورت ہے تو اپنا مال ان کے لیے پیش کریں. اگر افرادی قوت ان کے پاس کم ہو جائے تو اپنے افراد ان کو مہیا کریں. جی. لیکن براہ راست ان کے لیے اس میدان میں کودنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے. تو اگر وہ حکمران یہ نہیں کر رہے، 50 سے زائد ممالک کے حکمران اگر وہ سوئے ہوئے ہیں تو ہم عوام ان کے جگانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کریں. جی. لیکن براہ راست میدان جہاد میں کودنا عوام کا درست نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہوش دے دے، گہری نیند سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا دے، بیدار کر دے. اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں مظلوموں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی داد رسی فرما دے، ان کو آزادی دے دے، ان کو اللہ چھٹکارا دے دے، جو زخمی ہیں ان کو صحت دے دے، جو شہید ہو گئے شہادتیں قبول فرما لے. اس سے زیادہ ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہے کہ ہم خود اسلحہ اٹھائیں اور ہم بارڈر کی طرف چلے جائیں، ایسا نہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر اور ہیں جی، محسن صاحب ہے لاہور سے. جی السلام علیکم محسن صاحب. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے بھائی. اچھا میں نے سوال پوچھا تھا کہ میرے پاس نا گھر ایک میں نے بنایا تھا، اس کو نا کرائے پہ دینے کے لیے. اچھا. رینٹ پہ دینا، تو بعد میں ارادہ بنا کہ اس کو سیل کر دیا جائے. تو سیل ہونے میں ابھی اس کو 5-6 ماہ لگے ہیں، وہ سیل نہیں ہوگا. جی. تو زکوٰۃ کا کیا حساب ہوگا؟ کبھی اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی یا جب گھر بکے گا پھر دینی پڑے گی زکوٰۃ، یا جتنا سا اس کو بنانے میں لگ گیا جی وہ بھی سچ میں شامل ہو جائے گا؟ کیا اس کا بنا پوچھنا. جی محسن صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. سر گھر بنایا، پہلے سوچا رینٹ پہ دیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس کو سیل کر دیتے ہیں، 5-6 ماہ سے سیل نہیں ہوا. زکوٰۃ جب سے بنا ہے، بنانا شروع کیا تب سے ہوگی یا جب سے اب وہ پڑا ہوا ہے تب سے ہوگی؟ نہ رینٹ پہ دیا ہے جی، نہ سیل آؤٹ ہوا ہے. جی. تو وہ کسی بھی مقصد سے زکوٰۃ اب کس حساب سے دیں؟ رینٹ پہ تو وہ ہے نہیں، بکا وہ ہے نہیں، زکوٰۃ کس بات کی دیں؟ ابھی خاموشی اختیار کر لیں، سال پورا ہو جائے اور اگر یہ سیل ہو جائے تو 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں. ٹھیک ہے. اور اگر رینٹ پر چڑھ جائے تو سال اس کا رینٹ پڑا رہے، رینٹ بشرطے کہ خرچ نہ ہو. اور اگر سال کے دوران وہ خرچ ہوتا رہا، ختم ہو گیا، پھر بھی زکوٰۃ نہیں.
اور اگر زکوٰۃ وہ رینٹ کا پیسہ پڑا رہے سال بعد تو سال کے بعد زکوٰۃ دیں. ابھی تو اس کے آمدن ہے ہی کوئی نہیں, لہٰذا زکوٰۃ بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. ارشد صاحب ہیں جی لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نامی بھائی کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ, آپ فرمائیے. پٹی صاحب کو سلام دو تو میرے ابھی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی, اچھا میرا سوال ہے کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں تو میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں, ان کا عمرہ کر لینا چاہیے یا خالی طواف جو ان کے لیے ہے؟ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی سر اگر تو بھائی کا جذبہ دیکھیں, والد صاحب کے لیے نیکی کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے نیک جذبات قبول فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان بھائیوں نے اپنا عمرہ پہلے کیا ہوا ہے تو پھر یہیں سے والد کی نیت سے جائیں, لبیک اللہم عن فلان, والد صاحب کا نام لیں اور نیت ہی ان کے نام سے کریں اور پھر عمرہ کر کے آئیں. اور اگر والد صاحب انہوں نے اپنا پہلے عمرہ نہیں کیا ہوا تو پھر یہ جائیں اپنی طرف سے پہلے عمرہ کریں, پھر مدینہ منورہ جائیں گے تو واپسی پر مدینہ منورہ کے میقات سے احرام باندھتے ہوئے والد صاحب کی عمرے کی نیت کر لیں, تو پھر ان کی نیت سے دوبارہ آ کر عمرہ کر لیں, تو اس طرح دونوں کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. محمد عمران عامر صاحب نے پوچھا ہے وہی سوال جو کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جواب دیا کہ ان کی وائف کو سانس کی تکلیف ہے, وہ انہیلر لے سکتی ہیں؟ تو جی وہ بالکل لے سکتی ہیں, ہم نے جواب دیا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے جی کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے مفتی صاحب کی. سوال یہ ہے کہ میرے بچوں کا اور میرا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا, نماز اور قرآن پاک کے پابند ہیں ہم پورا گھر, لیکن کسی بھی کام میں کامیابی نہیں ہو رہی. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. بلکہ اگر آپ نماز کے پابند ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, نیکیاں بھی کر رہے ہیں, اللہ آپ سے راضی بھی ہے, تو پھر اللہ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے. جی تو اس امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کیا ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ ایک تنگی کے بعد اللہ دو دو آسانیاں دیتا ہے. تو یہ دعا جاری رکھیں, استغفار کریں کثرت سے, درود شریف پڑھیں اور اللہ سے ہر وقت مانگتے رہیں, خاص طور پر سحری کے ٹائم اللہ سے دعائیں کریں. انشاءاللہ یہ مشکل بہت جلد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. سوری باسم جواد صاحب ہیں جی قصور سے. جی السلام علیکم باسم صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ, بہت شکریہ کال کا, فرمائیے. اچھا ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, ان سے پروفٹ آ رہا ہے. اچھا جی. وہ ہم خود نہیں لینا چاہ رہے, وہ ایز اے کو رشوت کے طور پہ کہ گورنمنٹ ادارے کو ہم دے سکتے ہیں اپنے جائز کام کے لیے. جی جی اچھا ٹھیک ہے, بڑی صاحب نے سوال سن لیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ باسم صاحب. آپ نے نہیں سنا, مزیدار سوال تھا. جی بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں, آپ نے سن لیا, پوچھ رہے ہیں کہ بینک سے جو منافع سود کی شکل میں ملے گا وہ ہم لینا نہیں چاہ رہے کہ حرام کا مال ہے. ہاں جی. لیکن ایک کام ہمارا کسی سرکاری دفتر میں پھنسا ہوا ہے اور وہ رشوت خور اس کے بغیر کرتے نہیں ہیں, تو کیا وہ حرام کا مال ادھر سے لے کر ان حرام خوروں کو دے دیں؟ یار میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ جیسا مال ویسا کام, وہ ادھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری بدقسمتی دیکھ لیں جی کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی محکمے میں جائے تو اس کا جائز کام بغیر رشوت کے نہیں ہو پاتا. جی اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرما دے. آمین آمین. تو بھائی صاحب وہ سود کا مال ہے, پہلی بات تو آپ صحیح سمجھیں کہ وہ حرام ہے, تو آپ وہ اپنا اکاؤنٹ ہی ختم کرائیں نا جس پر آپ کو یہ پرافٹ آتا ہے. جی آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں جس پر بھی آپ کو پرافٹ نہیں ملے. جی اور فی الحال آپ وہ بینک میں نہیں چھوڑیں, وہ وہاں سے ضرور وصول کر لیں. اور یہ جو رشوت آپ کہہ رہے ہیں کہ دے دیں, تو چلیں یہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ حرام کا مال حرام کی کمائی میں جائے تو چلا جائے. ویسے اس کے لیے اگر کوئی غریب آدمی سود کی ادائیگی میں پھنسا ہو تو اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے ہے, اگر غلطی سے روزہ افطاری سے 2-3 منٹ پہلے افطار ہو جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ایزا نور یہ پوچھ رہی ہیں جی. غلطی سے اگر دن کے ٹائم وہ کھول لے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اذا نسی احدکم فاکل او شرب, جی اگر ایک بندہ بھول کے دن کے ٹائم روٹین کے مطابق اٹھا اور سامنے پانی پڑا ہوا تھا, اس نے 2 گھونٹ پی لیے, کھجوریں ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی, ایسے پکڑی اور منہ میں ڈالی اور کھا گیا. اگر ایسی صورت میں کہ وہ بھول گیا ہے اور اس نے کچھ کھا لیا ہے, کچھ پی لیا ہے, تو اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑا, وہ اپنا روزہ پورا کر لے. اور اگر اس نے عمدن کیا تو پھر تو ظاہر ٹوٹ ہی جائے گا. تو یہ 2-3 منٹ کی جو بات کر رہے ہیں کہ روزے سے 2-3 منٹ پہلے انہوں نے وہ بے دھیانی میں پی لیا,
तो कोई अर्ज नहीं, रोज़ा उनका इंशाल्लाह मुकम्मल है। तो 3 मिनट बाद फिर वो इफ्तारी की बाकायदा नियत के साथ रोज़ा इफ्तार भी कर ले। ठीक है। माज शेखपुरा से हैं हमारे साथ लाइव कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम माज साहब। माज साहब अस्सलाम वालेकुम, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, कॉल आपकी थ्रू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। माज टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए पहले ताकि हम बात कर सकें, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी क्या हाल है सर, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लाइव चल रही है कॉल? जी लाइव ही चल रही है, मैं लाइव ही आपसे बात कर रहा हूँ और लाइव ही आपसे दूसरी दफा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें वरना आपको समझ नहीं लगेगी मेरे भाई। जी जी टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया सर। कम नहीं करना, बंद करना है। कम करना है। अच्छा चले फरमाइए माज साहब। मैं कर रहा हूँ। अच्छा वॉल्यूम भी खुद बंद करने जा रहे हैं? कर दिया सर। जी बोलिए माज साहब बोलिए। अच्छा सर मैंने ना सवाल पूछना, हमारा बच्चा है हाफिज तलहा, उसने ना हिफज किया 2 साल पहले जी। तो पिछली दफा भी कहता था मैं मुसल्ला सुनाऊंगा तो वो नहीं सुना सका। इस दफा फिर उसने माइंड सेट किया कि मैं ना इस दफा लाजमी सुनाऊंगा जी। तो इस दफा भी ना वो सुना नहीं पा रहा, कहता जी मैं इस दफा भी नहीं सुनाऊंगा। तो इसके बारे में जरा रहनुमाई तो कीजिएगा मुफ्ती साहब से। बच्चे को हौसला अफजाई की ज़रूरत है। हाँ जी बहुत शुक्रिया माँ साहब कॉल के। उसको तसल्ली दें, उसको हौसला अफजाई करें, उसको कहें बेटा हम आपके लिए फलां चीज़ तैयार कर रहे हैं, बेटा आपको इनामात के लिए ये दे रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंस डेवलप करें बच्चे का। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के साथ साथ थोड़ी सहूलत दे दें। सहूलत दें। बाद दफ़ा होता है कि बच्चा घबरा जाता है, 30 पारे रोज़ मुझे सुनाना पड़ेगा 1 पारा। उसको कहें बेटा पूरा ना सुनाओ, आधा सुना लो, चलें आधा भी नहीं तो 1 पाव सुना लो। पहले दिन वो पाव सुनाए, दूसरे दिन पाव सुनाए, तीसरे दिन उसका जब शौक डेवलप होगा ना वो खुद आधे पर चला जाएगा। 2-4 दिन आधा पाव इस तरह सुनेगा तो हो सकता है वो पूरा पारा भी पढ़ने लग जाए। और बिलफर्द अगर नहीं भी पढ़ता तो भाई आपको पाव भी पढ़ के सुनाए ना, तो आप खुद उसके साथ खड़े, जो घर के अफराद उसके पीछे खड़े हो जाएं और घर में उसको शौक दिलाएं कि बेटा चलो भाई आप पढ़ो और हम सुनते हैं जी। तो इंशाअल्लाह ये बच्चा हौसला अफजाई से थोड़ी सी तसल्ली बढ़ाने से ये इंशाल्लाह आपको सुनाने लग जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। आगे पूछा गया जी कि अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी हमारी तरफ से। कहते हैं कि मदरसे को ज़कात लग सकती है? जी मदरसे के अंदर जो गरीब बच्चे पढ़ रहे होते हैं मदारस उन्हीं के नाम से ज़कात लेते हैं, जमा रखते हैं, फिर साल भर उसमें से अखराजात करते हैं। और ज़कात देने वाले हजरात भी वो फ़ी सबीलिल्लाह की मद में कि अल्लाह की राह में दे रहे हैं और उन गरीब बच्चों पर, मिस्कीन और फ़कीरों पर देते हैं जो मदरसे में तालीम ले रहे होते हैं। तो मदारस को बिल्कुल ज़कात दी जा सकती है। सर पैगाम टेलीविज़न को भी दी जा सकती है? पैगाम टीवी हम पहले भी कह रहे हैं कि पैगाम टीवी भी चूँकि दीन की नशो शात कर रहा है तो इसको भी ज़कात से फंड दिया जा सकता है। ठीक है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, मिसेस हसन है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस हसन। वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी काफ़ी टाइम बाद में यानी कि 10-15 दिन बाद आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। मेरा बेटा आपको बहुत आइडियलाइज करता है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। 7 साल का है वो, 7 साल का है वो, आपको लेके आगे बढ़ रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला नेक बख्त करे जी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। फरमाइए। मेरा सवाल ये है, मेरी बेटी 11 साल की है, उसका मैंने पिछले साल रोज़ा रखवाया था, 15 रोज़े से रोज़ा रखवाया था, फिर मैंने उसको कंटिन्यू रोज़े रखे जी उसके। अब जो है ना अब मैंने दोबारा रोज़ा, और जबकि उसको बोला गया था, मेरे जो अपने थे उन लोगों ने बोला कि नहीं अभी रोज़े की उम्र नहीं है, तुम बच्ची पे जुल्म कर रही हो। तो लेकिन मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये बात भी जहन में रखो कि औरत को लाइफ में कभी भी पूरे रोजे खुश नसीब औरत होती है जिसको मिलते हैं, वरना औरत की लाइफ में नहीं होते, पूरे रोजे छूटते हैं जी। कोई ना कोई मसले मसाइल रहते हैं औरत के साथ जी। तो अभी वो आपकी बेटी अगर रोजा रख रही है तो आप उसको रखवाएं, एज नहीं देखें, उसकी हिम्मत देखें। अब अगर वो रोजे रख रही है, अभी माशाल्लाह से कंटिन्यू कर रही है, उसके फाइनल पेपर भी चल रहे हैं, तो मैं उसका रोजा छुड़वा सकती हूँ या उसको अभी तक के तो मैं उसको बोल रही हूँ नहीं बेटा अब रोजा रख लिया तो मतलब रखना है, अब छोड़ना नहीं है बस जी। तो मैं उसको छुड़वा सकती हूँ या नहीं, उसका माइंड नहीं बनाऊँ। अभी मैं उसके पीछे ही आपको कॉल कर रही हूँ ताकि उसके सामने नहीं कर रही। अल्लाह अकबर। एज क्या बेटी की बहन? मेरी बेटी 12वें साल में। अच्छा चले ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। मैं भी जवाब लेता हूँ प्लीज़। हमारी बहन भी सख्ती कर रही है थोड़ी सी जी, और जिन्होंने कहा जी रोज़ा रखवाए ना वो तो टोटली रॉन्ग है जी।
छोटा बच्चा जो अभी बालिग नहीं हुआ, ये तो 12 साल माशाल्लाह उम्र है ना, जो 5-6 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, उनको भी रोज़ा रखवाने की तरगीब देनी चाहिए। उनको रखवाएं, और अगर ज़ोहर और असर के बाद वो बच्चे बिलकना शुरू हो जाए, नहीं बर्दाश्त हो पा रहा, उनको बहलाएं किसी तरीके से, कोई गेम खेल के, कोई दिलचस्पी को तहरीर पढ़ा के, कुरान पढ़ा के, किसी तरह से उनको बहलाएं कि शाम तक वो चले जाएं। अगर बिलफर्द वो नहीं बर्दाश्त हो रहा तो बच्चे को रोज़ा खुलवाना भी जायज़ है। और अगर आप कह रहे हैं जो मैंने उनको रुकवाना शुरू किया था मैं दरमियान में तोड़ना नहीं छोड़ूंगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्ची अगर अभी तक बालिग नहीं हुई, उनको 2-3 रोज़े मुसलसल रखवा के एक आध नागा करवा दें ताकि उनकी तबीयत थोड़ी बहाल हो जाए, बेहतर हो जाए। तो इस तरह उनका शौक़ डेवलप करते रहें बालग होने तक। जब वो बालग हो जाएंगे फिर छुट्टी नहीं है, फिर मखसूस अय्याम की वजह से हो तो हो, वैसे नहीं है। तो इसलिए बच्चों को सहाबा कराम भी तरगीब दिया करते थे, खिलौनों के साथ बहलाया करते थे ताकि उनका रोज़ा पूरा हो जाए। तो बच्चा जब वो समझदार हो जाए और वो रोज़ा रखना चाहता तो उसको बिल्कुल रखवाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 30 के 30 ही रखवाने हैं, नहीं। अगर वो अभी नाबालिग है तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है, नफरी वो रख रहा है, तो उसमें नागा भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है भट्टी साहब, सवाल जवाब और ट्रांसमिशन सब जारी रहेगा। आइए पहले चलते हैं नमाज इशा की इंशाअल्लाह ज़रूर मिलते हैं जी। नमाज इशा के बाद ट्रांसमिशन दोबारा आगाज़ करेंगे वहाँ से। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान, फिर रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान, फिर। फैज़ान रमज़ान ब्लेस्ड नाइट स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाइव कॉल्स आप हमें कर सकते हैं, और टेलीफोन कॉल पर जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद रखिए और एक वक्त में एक सवाल कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें। और यूट्यूब लाइव लिंक पे भी आप हमें ज्वाइन करते हुए अपने सवालात भेज सकते हैं। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, फ़ाखरा साहिबा हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया कॉल का, फरमाइए। हाँ जी, जो ना हमारे काम से चले गए हैं तो मेरे ना बहन और भी साथ कतल हुए हैं, तो मेरे ना भांजे जो है ना वो बड़े जज्बाती हो रहे हैं। फ़ाखरा साहिबा काइंडली थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आवाज़ आपकी नहीं आ रही। हाँ जी, वो ना हमारे कत्ल हुआ है ना, मेरा बहनोई कत्ल हुआ है ना, अल्लाह। तो मेरे जो बहनोई है ना वो कत्ल हो गए हैं, तो मेरे भांजे बड़े परेशान हैं, तो वो ना जज्बाती भी बड़े हो रहे हैं और मेरी बाती भी बड़ी परेशान है, तो इसलिए बात करनी थी। जी जी, फरमाइए फरमाइए। हाँ जी जी, क्या, हाँ जी, सवाल क्या है वो बताइए। सवाल ये है कि मेरी जो बाजी जो है ना वो बड़ी परेशान है, बच्चे बड़े जज्बाती हो रहे हैं, तो ना उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो ना लड़ते बहुत हैं मेरी बाजी से ना। अच्छा जी, तो आप क्या चाहती कि दुआ करवाई जाए उनके लिए? हाँ जी, दुआ करवाई जाए और कोई सबक बता देना कि जिससे मेरी बाजी पढ़े तो बच्चे को करना दिल नरम हो। अच्छा जी, ठीक है, अल्लाह ताला सब्र अता करे आपकी सिस्टर को। होने के बाद ना TSS भी बच्चे का कंप्लीट नहीं ना हुआ। अच्छा, चले, अल्लाह ताला आसानियाँ करे और इस दुनिया से जाने वाले को जवार रहमत में जगह दे। कॉल करने का शुक्रिया भट्टी साहब। है तो काफ़ी तकलीफ दे बात। जी भाईजान, ये है इस्लामी निज़ाम ना होने के नुकसानात। जी, इस्लामी हुकूमत होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलकुम फ़िल क़िसास हयात या उलिल अलबाब, ऐ अक़ल वालो क़िसास ले लो, इसमें तुम्हारी ज़िंदगियाँ हैं। और आप देखें कि जहाँ ये इस्लामी हदूद नाफज हैं, साल में चंद एक गिनती के लोग दुश्मनी की वजह से, हादसों की वजह से मारे जाते हैं, और कातिल जो है वो फ़ौरन पकड़ा जाता है और हाथ उसको हद क़िसास लगा के तो किस्सा तमाम और पूरा मुआशरा पुरसुकून नींद सोता है जी। और हमारे यहाँ कत्ल गारत ऐसे है जैसे जंगल है, कोई कानून ही नहीं है। तो इसलिए मज़लूम के वरसा का जो मज़लूम है वो तड़पना, उनका इस तरह से जज्बाती होना, ये एक फितरी सी बात है। अगर उनको पता हो कि यहाँ कानून है, हुकूमत है, और जो हम पर जुल्म हुआ उसका हिसाब बहुत जल्द हो जाए, तो यकीनन जज्बात ठंडे हो जाएँ, कंट्रोल में आ जाए। तो अभी फ़िलहाल उनको क्या करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाएँ। और अगर ये बदले की सोच रहे हैं बच्चे तो गलत सोच रहे हैं, इस तरह तो मज़ीद फ़साद बढ़ेगा।
इनको अपनी वालदा का ख्याल करना चाहिए, अपना ख्याल करना चाहिए। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कसरत से पढ़ें, इससे दिल को सुकून भी मिलेगा। और उसके अलावा जो हमने कई बार दुआएं बताई, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, वो पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ व रब्बुल अर्शिल करीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमात उस वक़्त पढ़ते थे जब दिली बेचैनी को हो, जब मुश्किल हालात हों तो अल्लाह की मदद चाहिए, तो उनको भी ये कलिमात पढ़ने चाहिए, सुकून भी मिलेगा, अल्लाह की तरफ से रहमतें भी आएंगी। अल्लाह ताला इनके जाने वाले की बख्शिश फरमाए और इनको हौसला और हिम्मत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, हमारे पास जो लाइव क्वेश्चंस आ रहे हैं, कासिम हसनैन हमें लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह ताला आपको और मुफ्ती साहब को अपने घर की हाज़िरी अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आमीन, जज़ाकल्लाह जी। मुफ्ती साहब, मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मक्का और मदीना जाने की का कोई वजीफ़ा अता फरमाएँ कि अल्लाह ताला बुला ले। बस जिस दिन आपकी तड़प आसमानों तक पहुंच गई, असबाब वो खुद ही मुहैया कर देगा। तो आप पूरी लगन के साथ अल्लाह से दुआ करते रहें, सहरी के टाइम दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। ज़ीनत अल्ताफ़ लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब से दुआ करवा दें कि अल्लाह पाक मुझे कुरान की मोहब्बत भी अता कर दे और बस अपनी रज़ा अता कर दे। माशाअल्लाह, बहुत नेक ख्वाहिश है, अल्लाह ताला इनकी इस ख्वाहिश को पूरा फरमाएँ। आमीन। तो जब ख्वाहिश है तो उसके मुताबिक अमल भी करें ना जी। तो कुरान मजीद को वक़्त दें जी, इसको पढ़ें, इसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ें, इसको सीखें, इस पर अमल करें तो मोहब्बत हर रोज़ बढ़ेगी। आप जितनी बार कुरान मजीद को पढ़ते हैं दिल को सुकून भी मिलता है और उसके साथ मोहब्बत में इजाफा भी होता है। तो इसके साथ लगाव ऐसा रखें कि सुबह और रात या दिन को भी वक़्त मिले तो लाजमी इसको पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ इसके मतलब और मफ़हूम को समझने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ये जज्बा और लगन आपकी आखिरत और दुनिया दोनों जहान के लिए कामयाबी के लिए बेहतरीन नुस्खा होगा इंशाअल्लाह ताला। उसामा गुजर लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। सवाल है कि सूद और तजारत में क्या फ़र्क है? सुभान अल्लाह। सूद और तजारत में बहुत सारे फ़र्क हैं। पहला और बुनियादी और सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा जी, कि अल्लाह ने ख़रीदो फ़रोख्त तजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है जी। सबसे बेसिक फ़र्क तो ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि तजारत बाहमी रज़ामंदी से होती है, एक शख्स कोई चीज़ बेच रहा होता है, दूसरा कोई ख़रीद रहा होता है और दोनों को नफ़ा हासिल होता है। एक पैसे की सूरत में वसूल कर रहा है और दूसरा उसको चीज़ ले रहा है जिससे वो इस्तेफ़ादा कर रहा है। ठीक है। सूद के अंदर बाहमी रज़ामंदी नहीं होती, एक शख्स की मजबूरी होती है और दूसरे का जगह टक से कह लें, वो कहता है जी दूंगा इतने लूँगा इतने, उसमें कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ पैसा होता है, पैसे पर वो पैसा कमाते हैं जिसको हम सूद कहते हैं। इसके अलावा तिजारत करें तो दुनिया की मंडियाँ फैलती हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों को रिज़्क मिलता है, माशरे में मुस्बत एक्टिविटीज़ होती हैं। और सूद के साथ मार्केट डाउन बंद सुकड़ जाती है, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, लोगों को रिज़्क नहीं मिलता, सूद खोर अमीर होता जाता है और लोग उसी की किस्तें अदा करते करते पिस जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो सूद की तबाही कारियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि मेरे साथ ये जंग है, फ़ाज़ानु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। सूद खोर को अल्लाह ने अपने साथ जंग करने वाला करार दिया है और जो कमा रहा है तजारत करिए उसको फरमाया अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कमाई करने वाला तो अल्लाह का दोस्त है जी। तो फ़र्क तो इसके इतने हैं, उलमाए कराम ने बयान किए कि जो गिनते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो इतना ही काफ़ी है कि ये सूद हराम है, अल्लाह के साथ जंग है और तजारत अल्लाह ने हलाल की है और उसमें बरकतें भी रखी हैं, नफ़ा भी रखा है। ठीक है। कासिम हसनैन साहब हैं, आपसे मुखातिब हैं, लिखते हैं मुफ्ती साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपका चेहरा बहुत नूरानी है, कैसे मुलाकात हो सकती है? सुभान अल्लाह। उनको कहें पैगाम टीवी आ जाए, मुलाकात करते हैं। किस शहर से हैं? शहर नहीं लिखा जी उन्होंने। हाँ, वो उनको कहें लाहौर, अगर लाहौर के हैं तो पैगाम टीवी तशरीफ़ लाएँ और अगर बाहर से हैं तो किसी दिन फ़ोन करके तशरीफ़ ले आएँ। ठीक। सैयद आबिद साहब हैं इस्लामाबाद से जी, इनको लाइन पर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद साहब फरमाइए। जी सर, मेरा कल एक सवाल था जी समुंदर के हवाले से, तो मैंने आपकी कल की वीडियो देखी नहीं, क्या मुझे उसका जवाब भी ना मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है आबिद साहब, हमने कल भी जवाब दिया था इस बारे में। जी
जी सर, मुझे आप बन रहा होगा जी, वो शायद आज अपलोड हो जाएगा या सुबह तक अपलोड हो जाएगा, तो फिर वो इनको फेसबुक पर मिल सकता है, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, आपको क्लिप इंशाल्लाह आज या कल में मिल जाएगा उसका बाकायदा। ठीक है सर। ठीक है जी सैयद आबिद साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और इसके बाद आगे पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं कुरान हिफ्ज़ करना चाहता हूँ और मेरी बहुत ख्वाहिश है, आप दुआ करें अल्लाह मुझे तौफीक दे और मैं कुरान हिफ्ज़ कर लूँ। अल्लाह ताला आपकी इस दिली तड़प को कबूल फरमाए, आमीन। आप कोशिश करें, तौफीक अल्लाह ने देनी है, और तौफीक जब वो देता है तो फिर क्या होता है, नबी भाई हमारे भाई एक उम्रा करने गए हैं, कहाँ वहाँ पर एक तकरीब हो रही थी, एक बुज़ुर्ग ने हिफ़्ज़ किया मस्जिद नबवी के अंदर, और किस उम्र में, बुढ़ापे में, और किसी उस्ताद के बगैर। अल्लाहु अकबर। कैसे किया है? सिर्फ अज़म के साथ। कहते हैं वो हर रोज़ घर से जब मस्जिद में आते हैं ना, असर की नमाज़ पढ़ते हैं, अमूमन वहाँ पर बुजुर्ग असर के टाइम आ जाते हैं और इशा पढ़ के जाते हैं जी। तो उन्होंने अज़म किया कि मैं ज़्यादा नहीं तो एक आयत मस्जिद नबवी में आकर रोज़ाना की याद किया करूँगा, सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं, बोझ नहीं डाला अपने ऊपर जी। एक एक करते ही उन्होंने पूरा कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया है, सुभान अल्लाह, और आज तकरीब हो रही है। तो ये भाई साहब का शौक़ है, अल्लाह इसमें इजाफा फरमाए। तो ये हिम्मत करें, अपने 24 घंटों में से कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें कि ये तो मेरे रब का और मेरे कुरान का, बस उसमें कोई और काम ना करें, तो ये देखें फिर रिजल्ट उसके कैसे शानदार आते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, एक और लाइव कॉलर है उस्मान बाजवा जी सियालकोट से जी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। बताइए। मुफ्ती साहब को भी मेरा सलाम, और कारी साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ा जो आज कारी साहब कलाम पढ़े थे। जी 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 मेरा माशाल्लाह। सवाल ये था कि अगर रोजे के दौरान हिजामा करवाएं हम तो रोजा तो नहीं टूटता उससे, ये जो हिजामा होता है। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। हिजामा को आजकल सिंगी भी कहते हैं और कप थेरापी भी कहते हैं। कप थेरेपी जी। कप थेरेपी जो है वो आजकल आसान हो गई है कि वो जिस्म के मखसूस हिस्सों पर कट लगा के कप के ज़रिए खून निकालते हैं जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसकी सूरत हाल को थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, एक कट लगा कर, लेकिन कोई माहिर तबीब होता था कि आपको तकलीफ़ जो है उसका मर्ज़ कहाँ है, वो जिस्म के मखसूस पॉइंट पहले ढूंढता, फिर मखसूस अय्याम में कि कब खून निकालना है, कब बेहतर रहेगा, और फिर वो कट लगा के, तो वो जिस तरह हम सटरा के साथ जूस वगैरह पीते हैं, इस तरह सटरा के साथ वो खून मुंह से खींचते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, सिंगी लगाने वाला और लगवाने वाला दोनों को रोज़ा टूट गया। उसका मतलब ये था कि जब ये ज़ोर से खींचेगा तो बड़ा मुश्किल है कि ये खून से बचे, क्योंकि इसके गले में चला जाएगा, इस लिहाज से इसका भी टूट गया। और जो लगवा रहा है अगर उसकी सेहत कमज़ोर हो गई, खून निकलने के बाद वो मज़ीद कमज़ोर हो गया और रोज़ा तोड़ने तक नौबत चली गई, तो इसलिए आपने तंबीह फरमाई कि इन दोनों को ये काम रोज़े की हालत में नहीं करना चाहिए। तो रोज़े के बाद करवाना ही बेहतर और औला है, अगरचे रोज़े की हालत में करवाना भी जायज़ है। जैसे आजकल तो कप थेरापी आ गई, मसला ही कोई नहीं है, लगाने वाले की तो मसला कोई नहीं, लगवाने वाले की अगर जान इतनी हो कि वो ये खून निकलवाने के बाद भी सेहतमंद रहता है, रोज़ा बर्दाश्त कर लेगा, तो फिर रोज़े में करवाए, वगरना रात बहुत लंबी है, रात में करवाए। ठीक है ठीक है। आगे पूछा गया है कि नौरीन हारून साहिबा लिखती हैं, सर आपसे पूछा था कि ज़कात और सदका अगर अपने किसी रिश्तेदार को देना हो तो पहले ये बताना ज़रूरी है कि ज़कात है या सदका है। ये हमारे मुआशरे का कबीह तरीन एक रवैया है कि हम जिसको ज़कात देते हैं ना उसको साथ कत्ल भी करते हैं। अल्लाह अकबर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि आपने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 किस्म के खुश नसीब जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया देगा। उनमें से एक शख्स वो है कि जो अपना सदका, अपनी ज़कात देता है दाएं हाथ से और बाएं को भी नहीं पता चलता कि वो क्या दिया है। इतना पोशीदा, इतना खुफिया, इतना राजदारी के साथ। तो जिस बंदे को आप जाकर कहें लो भाईजान रमज़ान आ गया, हमने ज़कात निकालनी थी, चलो सोचा तुम रिश्तेदार भी हो, ये पकड़ो ज़कात और मौज करो जी, क्या ख्याल है? वो अंदर ही अंदर उसकी रूह खत्म हो जाएगी, खत्म कर दिया। तो ये बताने वाला पता नहीं कहाँ से लोगों ने निकाला है कि उसको बताना चाहिए। भाई ये सदका आपका और आपके रब का मामला है, आपने अजर अल्लाह से लेना है, लोगों से तो नहीं लेना। तो आप खामोशी से उसकी जेब में डाल दें, लो भाईजान कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरियात पूरी कर लेना, लो भाईजान ये ईद का गिफ्ट है, जो लो भाईजान ये रमज़ान का गिफ्ट है।
ज़कात आपके दिल का फ़ेल, आपका नीयत में है कि मैं ये ज़कात दे रहा हूँ, आप उसको मत बताएं कि ये ज़कात है, ये सदका है, ये फ़लाँ है। और अगर आप ये सोच सकते हैं कि लो जी वो तो पता नहीं ज़कात का मुस्तहिक था कि नहीं, तो ये पहले चेक कर लेना जी। अगर वो ज़रूरतमंद है, गरीब है, मिस्कीन है, उसको ज़कात और सदका दोनों ही दिए जा सकते हैं, तो तब दें, और दें खामोशी से दे दें। लेकिन ये बताकर उसको वो सदका ही, तो वो कब लेगा? उसकी इज्जत तार ना कर दें, वो बेचारा बहुत मजबूर और लाचार भी हो ना, तो जब आप कहेंगे ना कि ये ज़कात ही है, लेनी हो तो ले ले, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। एक लाइव कॉलर है जी, नदीम साहब हैदराबाद से जी। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम सलाम जी नदीम साहब, पहले आप दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, फरमाइए। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि क्या इंसान पे जिन्नात का असर होता है? अगर होता है तो ये किस तरह से मालूम हो कि ये जिन्नात का असर है या ये कोई नफसियाती बीमारी है? अच्छा जी, ठीक है जी, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। इंसान पे क्या जिन्नात का असर होता है? अगर होता है तो कैसे मालूम हो ये जिन्नात का असर है या कोई और मामला है? जिन्नात का असर होता है तो हम कहते हैं ना ये मजनून है जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रुफ़िअल क़लम अन सलास, 3 लोगों से हिसाब किताब नहीं है, उस पर शरीयत लागू नहीं हो रही होती, उनमें से एक मजनून है। तो मजनून कहते ही उसको जिसको जिन्न चिमट जाए, जिसको साया हो जाए और वो उसकी वजह से उसको होश ठिकाने ना रहें जी। पता कैसे लगेगा? ये तो हमारे जादू जिन्नात वाले बेहतर बताते हैं हमारे सेगमेंट में। अलबत्ता उसकी कुछ अलामात हैं कि जब आप तमाम टेस्ट कराएं जी, टेस्ट आपके क्लियर हैं, 2 अद्वियात लेते हैं, कोई असर नहीं होता है, तो इससे महसूस किया जा सकता है कि मरीज़ को शरई दम करवाने की ज़रूरत है। दवाइयाँ असर नहीं कर रही, रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि जिन हो सकता है। ठीक है। सर आगे पूछा गया है कि मसाजिद में बिलअमूम परफ्यूम का छिड़काव किया जाता है, कपड़ों को या जाए नमाज को परफ्यूम लगा हो तो क्या नमाज हो जाती है? जी, ये भी हमारे यहाँ बहुत मशहूर मसला है कि अगर आपने परफ्यूम लगाई जिसमें अल्कोहल होती है तो कपड़े नजस हो जाएंगे, पलीद हो जाएंगे, तो नजस कपड़ों में नमाज नहीं होती है जी। इस बारे में जमहूर उलमाए किराम का मौक़िफ़ ये है कि शराब नजस है, और दलील क्या है? अल्लाह ताला का ये फरमान कि इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुन मिन अमलिश शैतान फजतनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालो, शराब, बुत, किस्मत मजमाई के तीर और जुआ, ये सारे जो हैं ये नजस पलीद हैं, इनसे बच जाओ ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो इन उलमाए किराम के नज़दीक अल्कोहल चूँकि नजस है, पलीद है, लिहाजा कपड़ों के ऊपर लगे, जैनमaz के ऊपर लगे, जिस्म के ऊपर लगे तो ये नजस हो जाएंगे और इस हालत में नमाज नहीं होगी जी। दूसरे मुहक्किकीन उलमाए किराम कहते हैं कि इन 4 चीज़ों को अल्लाह ने जो कुरान मजीद में रिजसुन कहा है तो ये इनकी मानवी निजासत है, हिस्सी नहीं। मानवी क्या मतलब कि ये काम गंदे हैं, पलीद हैं, नजस हैं, हराम हैं, इनसे बचना चाहिए। मानवी तौर पे ये हराम और नजस हैं, लेकिन हिस्सी यानी उनका जिस्म हराम नहीं है। मसलन आप कहते हैं कि शराब कपड़ों पर गिर गई तो कपड़े नजस हो जाएंगे जी, तो क्या वो तीर की जो किस्मत आजमाई के लिए उनको हाथ लगाने से हाथ नजस हो जाएगा? या बुत जो पड़ा हुआ है, बुत को हाथ लगाएं तो हाथ पर नजस हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। या ताश खेल रहे हैं जुए के लिए तो ताश पकड़ी तो हाथ नजस हो गए? ऐसी कोई बात नहीं। तो मुहक्किकीन कहते हैं यहाँ रिजसुन जो है ये मानवी निजासत है कि ये हराम हैं, इनसे बचो, और ये हिस्सी तौर पर नजस नहीं है। लिहाजा इन उलमाए किराम के नज़दीक अगर किसी परफ्यूम में अल्कोहल हो और वो कपड़ों पर लग जाए तो कपड़े नजस बिल्कुल नहीं होते और नमाज भी जायज़ है। अलबत्ता फिर वो ये फ़र्क भी थोड़ा सा करते हैं कि अल्कोहल की मिकदार कितनी थी। कुछ परफ्यूम है जिनमें अल्कोहल की मिकदार 5%, 2, 3, 4% होती है, और फिर वो उलमाए किराम कहते हैं कि जब इसमें ऑयल डाला जाता है, मज़ीद चीज़ें डाली जाती हैं परफ्यूम बनाने के लिए, तो वो 5% जो है वो उसमें हल हो जाकर ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे परफ्यूम तो बिल्कुल भी जायज़ हैं, कोई अर्ज नहीं। ठीक है। और अगर अल्कोहल की मिकदार हो 90%, 80%, तो फिर वो कहाँ हल होगा और कहाँ जाएंगे? तो इसलिए उलमाए किराम कहते हैं कि उनको ना लगाना ही औला और अफजल है। ठीक है। खुलासा बहरहाल ये है कि ऐसे परफ्यूम जिनमें अल्कोहल हो, अगर वो मिकदार बिल्कुल थोड़ी है तो नमाज हो जाएगी, कपड़े भी नजस नहीं होंगे, लेकिन इससे बचना फिर भी औला है, फिर भी अफजल है, क्योंकि दीगर अतर मौजूद हैं तेल वाले जिनके अंदर अल्कोहल नहीं होती। तो जब एक सही, अच्छी, बेहतरीन चीज़ मौजूद हो तो इनसे इज्तनाब कर लेना चाहिए। लेकिन तहकीकन जो उलमाए किराम ने कहा कि अगर मिकदार बिल्कुल थोड़ी हो तो कपड़े नजस नहीं होते और ना ही नमाज ख़राब होती है, नमाज हो जाएगी।
लेकिन जिन परफ्यूम के अंदर 90 से 80% जो है वो अल्कोहल होती है, तो वो तो बिल्कुल भी किसी तरह भी दुरुस्त नहीं होती। ठीक है, एक लाइव कॉलर हैं जी हमारे साथ, उम्मे अब्दुल्ला एबटाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया कॉल। मुफ्ती साहब से सवाल करना है कि जो हम ये अपने लिए इस्तग़फ़ार या दुरूद शरीफ पढ़ के अमानत रखते हैं कि मरने के बाद अल्लाह ताला हमें इस पर सवाब अजर अता करे, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी कह रही हैं कि पढ़ने के अपनी इमानत रख ले, खुद ही पढ़ के दरूद शरीफ, अस्कार, कोई भी चीज़ें, और वो मरने के बाद हमें उसका सवाब मिले, तो वो अपने लिए रख सकते हैं पढ़ के। इमानत रखने का मतलब क्या है? जी मैं समझ नहीं अल्लाह पाया। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम्हारे दोनों कंधों पर हमने किरामन कातिबीन रखे हुए हैं, लिख रहे हैं वो। जी, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारी ज़ुबान हिलती ही है, जो लफ्ज़ तुम अदा करते हो, अगर वो अच्छा है तो दाएं वाला लिख लेता है, अगर बुरा है तो बाएं वाला लिख रहा है। तो आपको अपने पास सेव करने की, इमानत रखने की, ये तो तकल्लुफ़ है, ज़रूरत नहीं है। आपकी हर नेकी रिकॉर्ड हो रही है, आपका हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है, और अल्लाह ताला का रिकॉर्ड तो ऐसा है, फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। एक ज़र्रे बराबर भी नेकी होगी ना, तो वो उसके नामा माल में महफूज है। सिर्फ हमारी नहीं नामी भाई, हमारी मुसलमानों की नहीं, मोमनों की नहीं, वो जो मुजरिम होंगे ना क़यामत वाले दिन, वो भी हैरान परेशान होंगे कि ये अल्लाह ने जो हमारा रिकॉर्ड नामा रखा है, ये कैसा अजीब गरीब रिकॉर्ड नामा है कि इसके अंदर ज़र्रे ज़र्रे की तफसील मौजूद है। तो वो इतना शानदार सिस्टम होते हुए हमें अपने पास से तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेकियां करते जाएं, अल्लाह के यहाँ महफूज हो रही है। इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, कुरान पढ़ें, सब के सब अल्लाह के यहाँ महफूज है। बस कोशिश करें कि वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएं और हम अपनी किसी हरकत की वजह से उनको ज़ाया ना कर बैठें। ठीक है, आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी हमारा। हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन साथ साहब का शामिल किया था, तो वो उसके लिए हमें शुक्रिया कह रहे हैं, आपको भी और मुझे भी। अच्छा जी, उसके बाद मज़ीद क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो रिपीटेडली आ रहा है, तो उसको फौरी तौर पर शामिल कर लें। वसीम सरवर हमें कहते हैं कि लोग कहते हैं भिखारियों को ना दें, तो फिर क्या करें? हमें सफ़ेद पोश मिलते नहीं, और ना ही मालूम है कि सफ़ेद पोश कौन है और कौन नहीं। ये किस दुनिया से फ़ोन कर रहे हैं जी, जहाँ इनको सफ़ेद पोश नहीं मिल रहे? भाई साहब, अगर आपको सफ़ेद पोश नहीं मिलते तो हमारे साथ रब्ता कराएं, हम आपको हज़ारों नहीं लाखों सफ़ेद पोश दिखा सकते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई वो कौन सी जगह है जहाँ सफ़ेद पोश अब नहीं हैं? तो ये जो इशारों पर खड़े हैं, सिर्फ इनको मुझसे समझना, ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। निज़ामी भाई, आपको हकीकी वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक दिन सुबह साहिवाल जाने के लिए ऊबर पर बैठा, तो वो ड्राइवर जो है ना, वो सूटेड बूटेड, मुझे कहता मैं अच्छा मेरा बिज़नेस है, तो मैं बस सिर्फ अपने जेब खर्च बनाने के लिए सुबह चंद घंटे चलाता हूँ। तो वो बात से बात चली, कहता है एक दिन मुझे राइड आई, तो मैं इधर उधर देखूँ कि बेल आ रही, इधर बंदा दिखाई नहीं दे रहा, तो दूर से एक भिखारी ने मुझे इशारा किया कि मैं हूँ, इधर आ जा। अल्लाह, कहता मैंने उसको बैठते ही कहा, यार तू हट्टा कट्टा सेहतमंद नौजवान है, तो तू ये क्या काम कर रहा है? कहता उसने ज़ोर से क्या मारा, कहता मेरे पास फ़लाँ डिग्री भी है, फ़लाँ भी है, फ़लाँ भी है, फ़लाँ भी है, और बड़ा अरसा दफ्तरों के धक्के खाए हैं, जॉब नहीं मिली, तो मैंने ये बिज़नेस शुरू कर लिया विदाउट इन्वेस्टमेंट। फिर कहता वो मुझे मुस्करा के कहता है, रोज़ाना के कितने कमा लेते हो? कहता मैंने उसको कहा मैं सुबह आता हूँ, 10 बजे तक 11 बजे तक मैं 2-3 हज़ार मेरा बन जाता है, मेरे लिए काफ़ी, मैं तो चला जाता हूँ। कहता यार छोड़, इतनी मेहनत करते हो, कल से 5,000 मेरे से लो, मेरे साथ आ जाओ। ये हाल है उनका जिनको हम गरीब समझकर इशारों पर खड़े हैं, बेचारे हैं, तो बेचारे समझकर उनको अपने फंड्स देते हैं। तो ये बिल्कुल भी बेचारे नहीं है। अपने मोहल्ले में देखें, अपने अज़ीज़ोकार में देखें, जिस तरह वो भाई ने आज सवाल किया ना कि मेरी 30,000 आमदन है, ये सफ़ेद पोश, ये है सफ़ेद पोश, ठीक है, आपके चारों तरफ बिखरे हुए हैं, इनको देखें, इनको ढूंढें, इनकी मदद करें। ठीक है, एक लाइव कॉलर है एहसन साहब भक्कर से। जी अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। वालेकुम सलाम निज़ामी भाई, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और मुफ्ती साहब के लिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। फरमाइए एहसन भाई। जी, मेरा सवाल है कि सर नमाज जो सफ़र है, कितने फासले पर सफरी नमाज पढ़नी चाहिए जी, और ये अमल कितने दिन तक करना चाहिए? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल का और हमें पसंद करने का, पैगाम टेलीविज़न की नशियात को पसंद करने का बहुत शुक्रिया सर। जी, अल्लाह ताला ने जो मुसाफिर को रुख्सत दी है कि वो नमाज कसर भी कर सकता है, जमा भी कर सकता है,
तो सफ़र कितना होना चाहिए, हमने अर्ज़ की थी कि अपने शहर की हदूद क्रॉस करने के बाद जी, अगर वो लंबे सफ़र पर जा रहा है, लाहौर से मुल्तान कराची के लिए निकला हुआ है, तो लाहौर की हदूद ख़त्म होते ही बाहर निकल के वो कसर नमाज पढ़ सकता है। और अगर उसका सफ़र लंबा नहीं है, महदूद सा सफ़र है जी, तो फिर अपने शहर की हदूद से बाहर निकलकर 22 किलोमीटर तक चला जाए तो वहाँ जाकर वो कसर कर सकता है। ठीक है। अगर उसने वहाँ पर क़याम करना है तो 3 दिन तक वो कसर कर सकता है। बाद रिवायत में 15 दिन भी है, लेकिन वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवील लंबे सफ़र हैं, जिनमें एक सफ़र तबूक का है, एक सफ़र आपका फ़तह मक्का का है, एक आपका हज का सफ़र है। तो वो कई कई दिन पर मुहित है। किसी एक जगह पर जो आप ज़्यादा से ज़्यादा ठहरे हैं तो वो आप मक्का मुकरमा में ठहरे हैं 3 दिन, तो 3 दिन तक ठहरे तो कसर कर ले। और अगर 3 दिन से ज़्यादा ठहरने का प्रोग्राम हो कि मैंने हफ्ता रहना है, 10 दिन रहना है, महीना रहना है, तो फिर वो मुकीम के हुक्म है, फिर वो पूरी पड़ेगा। ठीक है। आगे लिखती हैं जी हमारी बहन है हलबा, हलबा या हिलबा, अब सर बताएंगे बेहतर। हिलबा HE है कि HI है? HU है, हलबा होगा ना, हुलबा होगा। हुलबा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम हुलबा है, मैं सियालकोट से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं एक माजूर लड़की हूँ, मेरा वज़ू ज़्यादा देर के लिए नहीं ठहरता, बार बार टूट जाता है, मैं क्या करूँ? प्लीज़ मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमाएँ। आगे आपको दुआएं दे रही हैं जी। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदरुस्ती दे, आफ़ियत से नवाजे। पहली बात तो ये है कि इसका इलाज करवाएं, इलाज मुमकिन है, ये वैसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज मुमकिन ना हो, इलाज करवाएं। और जब तक ये सेहत जो अब याब नहीं होती उस वक्त तक ये है कि ये नमाज के टाइम पर नया वज़ू करें, पैड वगैरह रख लें और नमाज शुरू कर दें। अगर नमाज के दौरान उनका वज़ू बार बार टूट जाए तो एक नमाज वो उसी वज़ू के साथ मुकम्मल कर सकती हैं। अगली नमाज के लिए पैंट चेंज कर लें और दोबारा नया वज़ू करें और नई नमाज पढ़ लें। ठीक है। एक और लाइव कॉलर हैं जी, शामिल करते हैं। असगर हुसैन साहब है फैसलाबाद से जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है मुफ्ती साहब, सब ठीक ठाक है? जी आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। हाँ जी सर, सवाल मेरा ये था, 2 चीज़ों के सवाल एक ही है लेकिन उसमें जुज 2 है जी। हराम और मकरू, ये शरीयत में इनके मतलब क्या हिदायत है? हराम तो हराम है, वो तो खा ही नहीं सकते जी, ठीक है। वो तो मुझे ये मकरू के बारे में क्या तफसील है? जी ठीक है। मकरू होगी और वो कैसे होती है मकरू? जी ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ सर, फरमाइए हराम और मकरू का फ़र्क। ये हमारे फ़ुक़हाए इज़ाम ने हमारी सहूलत के लिए कुछ इस्तिलाहें बनाई थी कि ये हराम है और ये मकरू है, और ये मकरू तंज़ीही है और ये मकरू तहरीमी है, जिससे हम मज़ीद उलझन में पड़ गए। तो सहूलत और आसानी किस में है कि शरीयत ने 2 चीज़ें बताई हैं जी। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये काम कर लो तो वो हलाल है, जायज़ है जी, और ये इस काम से रुक जाओ तो जिस काम से आपने कहा वो हराम भी है, उससे रुक जाना चाहिए। और मज़ीद ये जो है ना इस्तिलाहात, ये मकरू तहरीमी है, तंज़ीही है, ये हराम है, तो ये तालिब इल्मों के लिए हैं कि वो पढ़ें और उस पर अमल करें, उलमाए किराम के लिए हैं। तो ये किताबी इल्म उनके लिए रहने दें, और अवामी इल्म ये है कि या तो चीज़ हलाल है या हराम है जी, और इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसी है जो डाउटफुल है, तो शरीयत कहती है हलाल पर अमल कर लो, हराम के करीब भी नहीं जाओ, और जो डाउटफुल है उसको भी छोड़ दो। ठीक है। तो हमारे लिए सहूलत इसी में है कि कोई चीज़ हो या कोई काम हो, अगर तो क्लियर हो कि हलाल है तो कर लो, और अगर आपने उससे मना किया है तो फ़ौरन रुक जाओ, और अगर आगे आपको क्लियर नहीं हो पा रहा तो भी रुक जाओ, उसी में आफियत है। ठीक है जी। एक लाइव कॉलर हैं जी, आबिद साहब फैसलाबाद से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, फरमाइए आबिद साहब। अच्छा सर, मेरा मुफ्ती साहब से क्वेश्चन है कि वालिद साहब की वफात के बाद ना हमारे विरासती तकसीम हुई थी 6 बहनों 2 भाइयों और वालदा के नाम जी। तो हुआ ये था कि मेरे से जो बड़ा भाई है उसके मामलात माली ना कुछ ठीक नहीं है जी। तो वालदा ये कह रही थी कि मैं अपने हिस्से का जो विरासत है उसको दे सकती हूँ सब भाइयों को, अगर मैं इकट्ठा बिठा के उनकी इजाज़त से, या मैं खुद भी दे सकती हूँ अकेली। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आबिद साहब फैसलाबाद से पूछ रहे हैं विरासत जी। उनके वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हुए तो विरासत में इनकी वालदा को भी हिस्सा मिला, जिसका मसला वो पूछ रहे हैं जी। अब वालदा को जो हिस्सा मिला है ना, अब वो उनकी मलकियत है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो अपनी सेहत की हालत में दे सकती हैं। और जबकि दूसरे बच्चे राज़ी भी हों, खुश भी हों कि हमारी वालदा बड़े भाई को दे रही है कि उसके माली मामला ठीक नहीं है, तो भाइयों की रजामंदी से, बहनों की रजामंदी से वो बड़ा भाई ले भी सकता है, वालदा उसको दे भी सकती है।
और अगर आप वालदा वैसे गिफ्ट करें तो वो औलाद के दरमियान बराबरी ज़रूरी थी, लेकिन अगर दीगर राज़ी हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, वालदा सारा भी उसको दे दे तो जायज़ है। ठीक है अशफाक साहब, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है जी, ट्रांसमिशन जारी है जी, एक वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं। रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। फैज़ान रमज़ान ब्लेस्ड नाइट स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवालात आपके हमें मौसूल हो रहे हैं, बड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक सवाल और शामिल करते हैं। अब्दुल्ला जुल्फ़िकार अली हमें लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमें गिफ्ट में प्लॉट मिला था तो क्या उसकी ज़कात बनती है? अगर बनती है तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें बिज़नेस में बहुत लॉस हुआ है। अल्लाह ताला जी उनको बरकत दे और लॉस को अल्लाह ताला नफ़े में तब्दील फरमा दे। तो प्लॉट गिफ्ट में मिला तो मलकियत तो अब हो गया ना, तो जब मलकियत आपकी हो गया है तो ज़कात भी आपने देनी है। अगर अभी नहीं दे सकते तो पेंडिंग है, जब भी आपको अल्लाह तौफीक दे नियत रखनी है और देनी है। ठीक है। अदनान एहसन साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि मेरी बहन के लिए देनदार नेक रिश्ते के लिए दुआ करें और कोई वजीफ़ा या अमल भी बता दें, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह ताला जी इनकी इस नेक मकसद को पूरा फरमाए जी, इनकी बहन के लिए नेक साल खामद अता फरमाए। और दुआ ये है कि ये अपनी दुआओं में पंजाबी में मांगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह तेरे नबी का हुक्म ये है कि दीनदार को रिश्ता दो, तो हम दीनदार की तलाश में, अल्लाह हमें दीनदार अता फरमा दे। और मुश्किल के लिए इस्तिग़फ़ार और दुरूशी पढ़े, रमज़ान का मौका है, अल्लाह की रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी। और साथ इस्तिग़फ़ार करें, अगर कोई मुश्किल होगी तो इस्तिग़फ़ार से मुश्किलात ख़त्म होती हैं, तो इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी। ठीक है, समीना साहिबा साहिबाल से शामिल करते हैं इनकी कॉल को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी बहन टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा प्लीज़। जी फरमाइए, क्या कहना चाह रही हैं आप? जी मैंने ना मुफ्ती साहब से बात करनी है। मेरे शौहर ने किसी लड़की से बात करता था और मुझे पता चला, तो मैंने कसम उठाई कुरान पे हाथ रख के। मैंने कहा कुरान पे हाथ रखो, दोबारा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। तो अब मैंने पूछना है मैं यकीन करूं ना करूं। उसके बाद भी उसने 2 दफ़ा की है बात। अच्छा जी, तो मैं मुतमिन नहीं हो रही और मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, टेंशन में मैं बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा, अल्लाह आसानियाँ करे जी। आपकी कॉल करने का शुक्रिया। हस्बैंड कॉल पे बात करते हैं किसी नामहरम लड़की से, कुरान पे उन्हें कसम भी खाई, कहती हैं अब मैं यकीन करूं या ना करूं। 2 मरतबा उन्होंने कहा, फिर दोबारा बात की है। अब आप बेहतर बता सकते हैं सर। नम भाई ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। जब से हमने दूसरी शादी को जुर्म बना दिया ना, फिर इस तरह के जुराइम बढ़ रहे हैं। यकीन माने मुझे एक दोस्त ने बड़ा हैरान कर दिया। कहता है जी एक मखसूस शहर की बात कर रहा था और उसके शहर के बड़े बाज़ारों की बात कर रहा है जहाँ मार्केट है, ताजर है, बड़े बड़े लोग हैं। कहते हैं जी 60% लोग इसी जुर्म में इन्वॉल्व हैं। अल्लाह कि बेगमा दूसरी शादी का नाम भी लें तो वो जंग शुरू हो जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, बर्दाश्त नहीं करती, तो मजबूरन उनके खामद ये दूसरा फिर जुर्म जो है वो करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अगर बीवियां भी इस चीज़ को समझें कि अल्लाह ताला ने ज़रूरत रखी है, इजाज़त दी है, तो मर्द को जायज़ तरीके से उनकी ज़रूरत पूरी करने दें, तो ये मसाइल ना हों। अदल के साथ अगर अदल के साथ वो कर सकते हों, तो उनके पास वसाइल हों, वो अलहदा घर दे सकते हैं, अदल कर सकते हैं, तो करने दें उनको। वगरना बसूरत दीगर फिर ये जराइम जो होते रहेंगे। अब उन्होंने कुरान पर कसम ले ली और उन्होंने कसम दे भी दी जी। अब वो खुद ही कह रही हैं कि उन्होंने कसम तोड़ दी है कि 2 दफ़ा उसके बाद भी उन्होंने बात की है, तो कसम तोड़ने का कफ़ारा तो उन पर बनेगा और फिर गुनहगार भी होंगे कि उन्होंने कसम उठाकर ये किया है। तो बहरहाल इसका कोई मुस्बत हाल भी उनको निकालना चाहिए। फ़िलहाल कसम का कफ़ारा दें और दोबारा भी अगर कोई अहद करना है तो करें और ये गलत काम छोड़ दें और अपना जो जायज़ हक़ है, जो जायज़ काम वो कर सकते हैं, वो बीवी को मनवा के कर लें, दूसरी शादी करें ना।
اور اس طرح کی حرکتیں کرنے بند کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بہت سے کویسچنز ہیں. اب یہ ٹاپک ایسا نا اس پہ تھوڑی گفتگو کرنا بھی ضروری ہے. یا تو وہ ان کو اعتماد میں لیں اپنی وائف کو, پہلی وائف کو, اور ان کو وہ سمجھائیں, کنونس کریں. اگر واقعی یہ رشتہ ازدواج میں آگے منسلک دوبارہ سے ہونا چاہتے ہیں کسی اور کے ساتھ بھی, اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو بیوی سے خوش دلی کے ساتھ اجازت لیں اور وہ دے دیں. جی بیویاں جب اجازت نہیں دیتی تو پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بڑی صاحب میرے ایکسپیرینس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پہلی بیگم کو بتائے بغیر, جس طرح ایک تو ہوتا ہے نا کہ نکاح کرنا اور سب کو بتانا کہ پہلا نکاح ہوا تو دوسرا بھی نکاح بتانا چاہیے کہ آپ نے ایک شرعی کام کیا ہے. جی جی. وہ دوسرا نکاح نہیں بتایا ہوا لیکن نکاح کیا ہوا ہے دوسرا, تو کیا انہی وجوہات کی وجہ پر بتاتے نہیں ہیں کہ لڑائی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پہلی بیوی روڑ کر چلی جائے گی, بچوں کا مسائل ہوں گے, تو انہی مسائل سے بچنے کے لیے پھر وہ چپ چپ کر کے خفیہ طور پر شادی کر لیتے ہیں. جی. تو ان تمام حالات کی ذمہ داری پر کون ہے؟ جو شرعی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے خواتین کو کہ وہ اپنی بہن کی وجہ سے دوسری شادی سے منع یا دوسری عورت کو طلاق کا مطالبہ نہ کریں. عموماً پہلی بیویاں کیا کہتی ہیں, میں تب واپس آؤں گی, تب راضی ہوں, دوسری کو طلاق دو. یا بعض دفعہ دوسری کہتی ہے کہ میں شادی تمہارے ساتھ تب کروں گی جب پہلی کو طلاق دو. تو آپ نے اسے سختی سے منع کیا ہے, فرمایا جو اس کا مقدر ہے اس کو ملے گا, جو تمہارا تمہیں ملے گا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا خواتین کو بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. توپوں کا منہ آپ کی طرف ہے بٹی صاحب, میں کچھ نہیں کہہ رہا اس بارے میں. وہ بہن کافی پریشان تھی کہ روکیں, آپ نے روکا نہیں بلکہ آپ نے تلقین کر دی ہے. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہن کو تھوڑا سا فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر وہ اپنے خاوند کو اس گناہ سے بچانا چاہتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وگرنہ وہ چوری چھپے جاری رہے گا سلسلہ. اللہ رحم کرے. جی ایک اور لائیو کالر ہے جی, نازیہ صاحبہ ہیں گجرات سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے. جی الحمدللہ. میں جس جگہ پہ رہتی ہوں وہاں پہ مسجد میں عورتیں اعتکاف نہیں کر سکتی. اچھا. میری دلی خواہش ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہوں؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ میری بہن کال کرنے کا. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں, اعتکاف کی جگہ مسجد ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ازواج مطہرات ان کے حجرے آپ جانتے ہیں نا مسجد کے ساتھ تھے بالکل. اس کے باوجود اگر انہوں نے اعتکاف کرنا تھا تو انہوں نے خیمے لا کر مسجد میں لگائے ہیں. اگر گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھنا درست ہوتا تو ازواج مطہرات کے لیے تو مشکل ہی کوئی نہیں تھا, مسجد کے بالکل ساتھ ساتھ ان کے گھر تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے آ کر خیمے مسجد میں لگائے. تو اگر مسجد کے اندر انتظام موجود ہو تو خواتین مسجد میں آ کر اعتکاف کر لیں. اور اگر جس طرح وہ کہہ رہی ہیں خواتین کے لیے انتظام نہیں ہے تو اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے. جی ٹھیک. اس کے لیے اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ خواتین کی نماز تو گھر میں ویسے ہی افضل ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے گھر میں نوافل پڑھتی رہیں, دعائیں کریں, قرآن پڑھیں, روزے رکھیں. اور اعتکاف کی صورت اختیار نہیں بھی ہوتی تو ان کو تو اجر و ثواب اللہ ویسے ہی بہت دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے تو کوئی مشکل کام ہے نہیں. ٹھیک ہے. آگے جی اورنگزیب صاحب ہمیں لکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نائس اینکر نظامی صاحب, جی بہت شکریہ. اینڈ گریٹ مفتی بھٹی صاحب, گڈ جاب, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ بھائی. زینت الطاف لکھتی ہیں, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ جی, بہت شکریہ ہماری بہن. آگے کوشچن پوچھا گیا نظامی بھائی, الحمدللہ میں قرآن ٹیچر ہوں ماشاءاللہ, انشاءاللہ میں مزید سمجھوں گی, سیکھوں گی اور سکھاؤں گی بھی. سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوشچن نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیک خواہش کو پورا فرمائے, پورا کرے جی, آمین آمین. یہ ہو گیا جی. عدنان صاحب نے دوبارہ ہمیں بھیجا ہے کہ بہن کے رشتے کے لیے کچھ بتا دیں, ہم بتا چکے ہیں. آگے ہیں جی مسز ابرار, لکھتی ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نوید بھائی مفتی صاحب کو بھی سلام دیجئے. علیکم السلام. مجھے پوچھنا ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے روزے کے بارے میں کیا ہے کام ہے, جبکہ بچوں کی پیدائش کے بعد اس کے کئی رمضان بغیر روزے کے گزر جائیں. سبحان اللہ. اصل میں ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ہر حاملہ جی جو پریگننٹ خاتون ہے اور ہر دودھ پلانے والی ماں کو چھٹی ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے. ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ, جی کہ وہ لوگ جو مشقت برداشت نہیں کر پاتے, جن کے لیے روزہ انتہائی مشکل ہو جائے, اور حاملہ اور مرضعہ کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی یا بچے کی جان کا ان کو خطرہ محسوس ہو, جی
कि प्रेग्नेंट औरत समझती है कि अगर रोज़े रखेगी तो बच्चे की नशोनुमा रुकेगी या उसके जान को कोई नुकसान हो सकता है। डॉक्टर मना कर दें, ईमानदार मुसलमान डॉक्टर मना कर दें कि आप रोज़े नहीं रखें, बच्चे को नुकसान होगा जी। तो इस सूरत में प्रेग्नेंट औरत रोज़ा छोड़ सकती है। और दूध पिलाने वाली माँ भी अगर वो समझती है कि बच्चे को दूध पिलाने की वजह से उससे रोज़ा रखा ही नहीं जाता तो वो छोड़ सकती है। हर औरत को ये छुट्टी नहीं है। एक औरत सेहतमंद है, अल्लाह का फजल है और दूध को पिलाना उसके लिए मसला ही कोई नहीं है, या वो बच्चे को दूध पिला ही नहीं रही जैसे आजकल हो रहा है कि वो तो फीडर के जरिए उसको फीड कर रही है, तो फिर उसके लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलियसुम, जो घर में मौजूद है वो रोज़ा रखे। तो इनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त कब है? जब इनकी बर्दाश्त से बाहर हो या बच्चे को नुकसान का खदशा हो, तो फिर ये दे दें फिदिया, और फिदिया देने के बाद ये आज़ाद है। अब है मसला कि बच्चों की पैदाइश के बाद ये फ़ारग हैं, रोज़े रख सकती हैं, सेहतमंद हैं, या अभी बच्चे की पैदाइश, पहला बच्चा है, पैदाइश के बाद आपने दूध पिलाया नहीं है तो रोज़े आप रख सकती हैं, तो रोज़े रखने फ़र्ज़ हैं आप पर जी। और अगर बच्चे की दूध पिलाने के बाद 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद आप सेहतमंद हैं, रूबस्त हैं और रोज़ा रख सकती हैं तो आपको रोज़े रखने चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं वान तसूमु खैरुल लकुम, रोज़े रखो तो ये सबसे बेहतरीन है। तो अगर तो वो मरीज़ जो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है उसके लिए रोज़ा रखना, या वो रख सकता ही नहीं है, आखिरी उम्र है, बुढ़ापा है, तो फिर उसी पर क्यास करते हुए तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि हामिला और मुर्दा भी उन्हीं जैसी है, बशर्ते कि वो बर्दाश्त ना कर पाएँ और बच्चे की जान को ख़तरा हो तो फिर फिदिया दे दिया है, वही काफ़ी है। ठीक। लेकिन अगर वो रूबस्त हैं, सेहतमंद हैं और रोज़ा रख सकती हैं तो उनके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है, रखना चाहिए उनको। ठीक है। आगे बड़ा प्यारा मैसेज आया है, हमारे एक भाई हैं जाजेब दौरानी, लिखते हैं नवीद भाई सर आई लव यू जी, आई लव यू टू, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, हमारे से एक लाइव कॉलर भी हैं, शाजिया साहिबा गुजरावाला से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए मेरी बहन। सर मैंने मुफ्ती साहब से ये सवाल करना है कि मेरे पास मेरी वालदा साहबा ने पैसे जमा करके उम्रे की नीयत से मेरे पास बतौर अमानत रखवाए हुए हैं जी, और 3 साल हो गए मुझे, लेकिन वो उम्रे पे ले जाने के लिए उनका कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। अच्छा। तो वो पैसे जो मेरे पास बतौर अमानत है, तो क्या उन पे ज़कात बनती है और वो ज़कात मैं अदा करूँगी या फिर मेरी वालदा साहब अदा करेंगी? जी मेरी बहन, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर फरमाइएगा। जी, जब तक वो सेविंग है, किसी काम में सर्फ नहीं होती, उम्रे में सर्फ हो जाए, हज में सर्फ हो जाए, रोज़ेदारों को खिला दें, जब तक वो मौजूद है ज़कात तो बहरहाल बनती है। ज़कात देगा कौन? जो पैसों का मालिक है वही देगा। आपके पास तो अमानत है, आप वालदा मोहतरमा को इतला पहुँचाएँ कि अम्मा जी अगरचे आपका इंतज़ाम अभी नहीं हो पा रहा लेकिन साल तो पूरा हो गया है, तो आपकी इस सेविंग पर ज़कात बनती है 2.5%, वो दे दें। अगर वो ज़्यादा देती है तो आप खुद अदा कर दें, या वो कहते नहीं ये पैसे सेव रहने दो मैं अलग से ज़कात दे दूंगी, तो फिर भी ठीक है, लेकिन ज़कात बहरहाल देना ज़रूरी है। ठीक है। आगे जीनत अल्ताफ़ हमें लिखती हैं, भाई अभी शेख साहब ने दरूद और इस्तग़फ़ार की बात की है, काइंडली स्पेशली रमज़ान में इनके ज़रिए दुआ की क्या हैसियत है? रमज़ान में ये हैसियत है कि हर नेकी अल्लाह जो कबूल कर रहा है जी। रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है, तो वो काम जो आम दिनों में ज़रा देर से होता था रमज़ान में जल्दी हो जाएगा। अल्लाह की रहमतें और बरकतें आ रही हैं, हर रात अल्लाह आज़ादियाँ दे रहा है, तो जन्नत की तरफ से भी वादे आ रही हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, कुछ ले लो। तो इसलिए जब आपने रोज़ा भी रखो, अल्लाह की फरमा बरदारी में हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, आप नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं। तो इसलिए जब आप इस महीने में दुआएं करेंगी तो वो ज़्यादा कबूल होंगी। ठीक है, ठीक है। आगे हलबा साहिबा जिनका भी हमने जवाब दे कहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका और मुफ्ती साहब का, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे पैगाम टेलीविज़न बहुत पसंद है, अल्लाह इसको मज़ीद तरक्की की राह पर गामज़न रखे, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह। इनकी मोहब्बतें जी, दुआएं हैं। आगे पूछते हैं, नाम नहीं है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या रमज़ान में कुरान का ख़त्म ज़रूरी है? अजीज़ुल्लाह लाड़काना कंप्लीट करना कुरान का, यानी तरावी के अंदर जैसे हमारे यहाँ एक तसलसल बना है कि कारी साहबान जो हैं वो पूरा कुरान ज़रूर सुनाते हैं। जी जी जी। तो कुरान कराम का मकसद ये होता है कि साल के बाद चलो कम से कम एक बार लोगों के सामने सुना लेंगे तो वो मंजिल पक्की भी हो जाती है, वगरना शरीयत की किसी दलील से ये साबित नहीं है कि पूरे रमज़ान में पूरा कुरान तरावियों में पढ़ना चाहिए।
ठीक है। अगर नमाजी हज़रात सहूलत के साथ पूरा सुन सकते हैं तो पूरा सुन लें। असल मकसद नमाजियों का ख्याल रखना है जी। अगर नमाजी ऐसे हैं, मसरूफियात है, कमज़ोर हैं, बच्चे हैं, वो कहते हैं जी कारी साहब आप आराम आराम से पढ़ें और आधा पारा पढ़ लें, तो कारी साहब को आधा पढ़ना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही मिसाल दी थी कि एक मस्जिद के बुज़ुर्ग नमाजी कहते थे जी नहीं एक पारा नहीं चलेगा, ज़्यादा पढ़ें। तो हमारे दोस्त 7 पारे रोज़ाना के पढ़ते थे। और अभी आज एक जगह बात हो रही थी कि वहाँ हम तरावी पढ़ने जाते हैं तो रात के 2-3 बज जाते हैं, थोड़ी थोड़ी तरावी पढ़ते हैं, दरमियान में कोई दर्स व तदरीस का भी सिलसिला होता है, तो 2-3 बजे के करीब वो फारग होते हैं। इतना मज़े ले लेकर वो तरावियाँ पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो कि मस्जिद के नमाजी भी और आप भी सारे एक जैसे हैं, कुरान एक से ज़ायद मरतबा ख़त्म करना चाहते हैं तो भी जायज़ है। और अगर आपकी मस्जिद के नमाजी जो हैं वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो फिर उनका ख्याल करते हुए थोड़ा पढ़ना भी जायज़ है। ठीक है। एक लाइव कॉलर है जी उम्मे हसमान गुलशन रावी से लाहौर से हैं जी हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे ने बैंक में अगर 100 रुपया रखा है और वो है पिछले साल का, ठीक है ना, और उसकी वो ज़कात तो देगा ही देगा, मगर जो 20 रुपए ऊपर होते हैं उसकी आप मुझे बताएं कि वो जो ज़कात है वो आई है देनी, क्योंकि वो उसको 1 साल नहीं हुआ, वो कभी कम हो जाती है और कभी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ज़कात के पैसे जो हैं वो हम मस्जिद में नहीं लगा सकते, मगर अगर मस्जिद के बाहर बाथरूम है तो हम उसमें लगा सकते हैं, उनके नलके या दरवाजे वगैरह जो है वो हम क्या कहते हैं लगवा सकते हैं, और एक दरवाज़ा जो है वो मस्जिद के अंदर भी होता है। मुझे ये भी बता दीजिए कि आया वो बाथरूम के जो हैं वो हम क्या कहते हैं ज़कात के पैसों यूज़ कर सकते हैं? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, लेकिन गुजारिश है आपसे एक सवाल कर लिया करें तो ज़रा अच्छा है, लेकिन एनीवे अब आपने कर लिया तो रकम बैंक में मौजूद है। जी देखिए रकम बैंक में होने की 2 सूरतें हैं जी। जैसे कुछ बिजनेस वाले होते हैं हजरात कि हर महीने रकम आ भी रही है जा भी रही है, डेली आ रही है जा रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है जी। और इसी तरह जो सैलरी वाले हजरात हैं जी कि वो किस तरह हिसाब रखे हैं कि एक सैलरी जनवरी की है, एक मार्च की है, एक जून की है, तो ज़कात देनी है रमज़ान में अभी मार्च के अंदर, तो क्या करें वो? अगर तो वो हर महीने का हिसाब अलग अलग रख सकते हैं तो रख लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनके लिए अगर आसान है तो कर लें कि अभी आपने जनवरी में जिस रकम को साल हो गया उस पर ज़कात दें, फिर फरवरी में दें, फिर मार्च में दें, फिर अप्रैल में दें, तो हर महीने का चेक रखें कि किस रकम को साल हो गया है तो उस पर ज़कात देनी है। और अगर ये मुश्किल है और यकीनन है तो फिर इसका हल ये है कि भाईजान आप साल के बाद ही हिसाब करें कि इस वक्त बैंक में मौजूद कितने हैं, ठीक है। बाकी जो खर्च हो गए सो हो गए, और आपकी ये जो रनिंग है ना, आमदन आ रही है जा रही है, तो साल के बाद एक ही दफ़ा हिसाब कर लें, जितनी रकम उस वक्त मौजूद हो उस पर ज़कात दे दें, ठीक है। और ये सब के लिए आपके लिए आसान होगा, वगरना हर महीने का अलग अलग हिसाब रखें। ठीक है। वो मस्जिद को ज़कात दे सकते हैं? मस्जिद को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है, खास उसके वाशरूम ही हूँ, तो नमाजियों को अपने फंड्स के साथ ये सारे काम करने चाहिए। लेकिन अगर कोई इलाका ऐसा हो रिमोट एरिया जहाँ कोई वसाइल नहीं हैं और नमाजी ज़राअत के लिए मस्जिद तमीर करना भी मुश्किल हो रही हो, तो वो किसी दूसरे इलाके से ज़कात की मदद से मदद लेकर फिर वहाँ पर तमीरात कर सकते, जब कोई चारा ही ना हो, चारा ही ना हो। ठीक है जी। लाइव कॉलर और है, उनको शामिल करते हैं। खालिद परवीन सियालकोट से। जी खालदा परवीन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम खालदा साहिबा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, आपकी लाइन थ्रू हो चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी फरमाइए। जी मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ, मेरी वालदा वो कुरान पाक का नहीं पढ़ी हुई, तो बिस्मिल्लाह का कुरान पाक पढ़ते हैं। वालदा कुरान पाक नहीं पढ़ी हुई तो जी बिस्मिल्लाह का बिस्मिल्लाह, तो हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आप बिस्मिल्लाह का कुरान पाक पढ़ सकते हैं? अल्लाह अकबर। ठीक है, इसका जवाब हम दे चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी थैंक यू जी। आज हमने प्रोग्राम के शुरू में भी ये जिक्र किया था कि जो अहबाब कुरान मजीद नहीं पढ़े हुए, तो हमारे यहाँ रवाज है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के उंगली फेरते रहते हैं सफ़ात पर, तो इसको कहते हैं बिस्मिल्लाह का कुरान ख़त्म करना। तो ये हमारा देसी रिवाज है, ये कुरान पढ़ना नहीं है, ये तौहीन है कुरान की। ठीक है। तो बुजुर्गों को कुरान पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, इस उम्र में भी सीखना चाहें तो सीख लें, और जब तक नहीं है उसका हल भी बताया था कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तस्बीहात पढ़ते रहें।
या अगर उनको सूरह इखलास आती है तो वही पढ़ते रहें, बार बार वही पढ़ते रहें, इंशाल्लाह सवाब तो मिलेगा इंशाल्लाह। सर आगे एहतशाम जट लिखते हैं, नमाज को जमा करने का सही तरीका। नमाज को जमा करने का सही तरीका, कि जमा करनी क्यों है, पहले तो ये समझिए कि जमा क्यों करनी है। हाँ जी, आगे वैसे इनका साथ एक और ऐड है, अगला क्वेश्चन भी। ज़ोहर, असर और मगरिब इशा को इकट्ठा करने का तरीका क्या है, काइंडली बता दें। जी, ज़ोहर और असर को, मगरिब और इशा को बवक्त ज़रूरत, बंदा सफ़र पर है और सफ़र तेज़ी से करना चाहता है, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप ज़ोहर की नमाज को थोड़ा लेट कर लेते, सफ़र जारी रखते, और फिर असर के करीब आप काफ़िले को रोकते और फिर आप अजान पढ़ा के पहले ज़ोहर पढ़ते और फिर साथ ही असर भी पढ़ लेते। इसको कहते हैं जमा सूरी, कि सूरत और शक्ल में जमा है दोनों नमाजें अपने अपने वक़्त। जी। और इसी तरह मगरब को और इशा को भी, कि मगरब को लेट कर लेते और इशा को फिर पढ़ लेते। और अगर सफ़र में हूँ तो जमा तकदीम, जिसको हम कहते हैं, पहले पढ़ना भी जायज़ है। मसलन आप सफ़र कर रहे थे और आप ज़ोहर के टाइम पर रुके और आपने सफ़र के दौरान ज़ोहर पढ़ी और साथ ही असर भी पढ़ लें, और फिर मुसलसल शाम तक सफ़र जारी रखा। फिर आप कहीं रुके हैं तो मगरब पढ़ी है तो साथ ही इशा भी पढ़ लें, तो ये दोनों सूरतें ही जायज़ है। ठीक है। लाइव कॉलर है मिसेस मुदस्सर सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है सर, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। मेरा क्वेश्चन ना मुफ्ती साहब से ये है कि मोस्ट ऑफ टाइम, बल्कि ज़्यादातर ना लोगों को जब मैं किसी बात से ना उनको मना करती हूँ या फिर उनको नेक काम करने के लिए बोलती हूँ, तो वो ज़्यादातर लोगों का आंसर ये होता है कि माफ़ करने वाला तो अल्लाह ताला है, ठीक है, तुम इसका फैसला करने वाली नहीं हो, सही। तो मुझे इस मैंने नेक्स्ट क्या करना चाहिए, कि मुझे मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बैक स्टैप ले देना चाहिए, या फिर अपना काम करते रहना चाहिए? इवन के लोग इंसल्ट भी समटाइम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या करना चाहिए? आप पाकिस्तान के लिए ये बात कर रही हैं या पाकिस्तान से बाहर के लिए ये बात कर रही हैं? नहीं, पाकिस्तान में कहीं भी अपने बहन भाइयों में। अच्छा, अपने बहन भाई, हाँ, बहन भाइयों को आप जानते हैं ना, तो वो ये आगे से हाँ रिप्लाई दे देते हैं कि भाई आपको तो पता नहीं ना, माफ़ करने वाला अल्लाह ताला है, पता नहीं वो कौन सी बात पे हमें माफ़ कर दे। ठीक है, फिर ऐसी बात है, हम उनको मना करने वाले बनते हैं या नहीं बनते? ठीक है, ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी अदा करी हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच जी कॉल करने के लिए। कहती कि जी नेकी के काम की तरगीब दें, बुरे से रोके। वो कहते अपना काम करो, हमारा और अल्लाह का, तुम हमको हमारे जिम्मेदार हो। अल्लाह अकबर। तो ये बदकिस्मती है कि नेकी के बताने वाले की को डिसाइड किया जाए, उसकी हौसला शिकनी की जाए और अपनी बुराई पर अल्लाह की रहमत की उम्मीद पकड़ी जाए। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, शैतानी वसवसा है कि अल्लाह तो बड़ा गफूर, बड़ा रहीम है, उसने माफ़कारी देना, तुम हमें रोको भी ना। जी, तो रोकने वालों को तो अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर, कि तुम ज़रूर नेकी का बताओगे भी और बुराई से रोकोगे भी। और अगर तुमने ये दोनों काम छोड़ दिए तो फिर अल्लाह की तरफ से ऐसा अजाब और सजाएं आएंगी कि जो सब पर आएंगी, कोई नहीं बख्शा जाएगा। और उसके एक मंजर ये भी होगा कि तुम अल्लाह से दुआएं करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। तो इसलिए नेकी का बताने वाला, बुराई से रोकने वाला ये सोचे कि कहीं मेरी दुआएं ना रद्द हो जाएं, तो अपनी फिक्र करे। और फिर दूसरी जगह आपने फरमाया कि जिसको अल्लाह ने कुव्वत दी है वो बज़ोर बाजू रोके। मसलन घर में वालिद है, वालदा है, उनकी स्ट्रॉन्ग पावर है, तो वो बच्चों को बुराई से ज़बरदस्ती रोके जी, और नेकी का उनको ज़रूर हुक्म दें। बड़ा भाई है, छोटों को ज़बरदस्ती भी रोक सकता है, तो रोके। इसी तरह मुआशरे में कोई बड़ा है, ख़ानदान में बड़ा है, तो उसको रोकना चाहिए। और अगर वो उसके पास ऐसी पावर नहीं है तो फिर ज़ुबान से, मीठी ज़ुबान से समझा दे कि ये गलत काम है, छोड़ दो, अच्छा काम है, कर लो। अगर वो ये भी नहीं कर पाता, जैसे वो बहन कह रही है कि वो आगे से कहते तुम होते कौन हो, ऐसी सूरत हाल में वो कम से कम दिल से बुरा समझते हुए उनके इस बुरे काम में शामिल ना हो, वो साइड पे हो जाए। तो ये आखिरी दर्जा है ईमान का। और जो लोग ये सुन के आगे से उनकी हौसला शिकनी करते हैं कि तुम कौन होते हो, उनको अल्लाह से डर जाना चाहिए कि अगर नेकी का बता रहा तो ये उनका मुहसिन है, अगर बुराई से रोक रहा तो ये उनका खैर खा है। उनको ये बात समझनी चाहिए और उनकी हौसला शिकनी करने की बजाय उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बर वक़्त तंबीह की है। और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे तो फिर अल्लाह की पकड़, वो अल्लाह क्या कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह मोहलत देता है, चांस देता है बंदे को, तू कर ले जो करना है। और इसी तरह के समझाने वाले आते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और एक दफ़ा बंदा बहुत जब बागी हो जाता है ना,
تو ایک دم اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر اس کی چیخیں نکلتی ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ تو جہاں اللہ ارحم الراحمین ہے وہاں وہ جبار اور قہار بھی ہے، اور رب کہتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، تو اس وقت سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ کامران اشرف صاحب ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، کہتے ہیں 3 دفعہ کال کی ہے، ابھی تک میری لائن تھرو نہیں ہو رہی، کیا کروں میں؟ ٹرائی اگین جی، کوشش کریں۔ اور کیونکہ کیوں ہوتی ہے، فور دا لائٹر نوٹ، یہ میں نے بات کی، کیوں ہوتی ہے، کافی لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں، ضرور مل جائے گا۔ باقی اگر کوئی کویسچن ہے تو ادھر لکھ بھیجیے، جیسے آپ نے یہ لکھا ہے تو پھر میں آپ کو جواب بھی دے سکتا ہوں جی۔ اچھا جی، آگے لکھتے ہیں جی، سر میں غلام دستگیر سعودی عربیہ سے، میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے اور سونا میری وائف کے پاس ہے، اس پر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے سونے کے حساب سے؟ سونا کتنا وہ تو بتایا کوئی، وہ بتایا نہیں انہوں نے، یقیناً زیادہ ہے جو ان کو فکر نہ ہے۔ 7.5 تولے اگر ہو تو اس پر آپ نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ وہ کہتے ہیں میری بیوی کے پاس ہے، تو اگر سونے سے ہی زکوٰۃ دینی ہے تو بھی 2.5% ہے۔ جتنے تولے ہیں ان کے گرام بنا لیں، اس کو 40 پر تقسیم کریں، جو جواب آئے گا وہ 2.5% ہوگا، تو اتنے گرام جو ہے وہ سونا ہی زکوٰۃ دے دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سونا گھر کا گھر ہی رہے تو اتنے گراموں کی قیمت لے کر بازار سے، تو اتنی قیمت پیسوں میں ادا کر دیں۔ ٹھیک ہے، بیوی ادا کر دے تو بھی ویل اینڈ گڈ، اور اگر خاوند کہتا نہیں میں دے دیتا ہوں پھر بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے ذیشان حیدر پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میرا یہ سوال ہے کہ تہجد کی نماز میں کتنے نفل پڑھنے چاہیے اور نفل میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر، تہجد کی وہی نماز ہے جو آج کل ہم تراویح کہہ رہے ہیں، جس کو قیام اللیل کہہ رہے ہیں، اور یہ 8 نفل بھی ہیں، 8 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نفلوں میں پڑھنا کیا ہے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، اور اس کے بعد آپ کوئی سی سورت جہاں سے بھی آپ کو قرآن یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کویسچن ہمیں آیا ہے، اگر روزے کی وجہ سے حیض کا خون آتا ہو، خون کی کمی اور کمزوری ہو، تو کیا روزہ افطار کر لے؟ روزے کی وجہ سے مینسز آنا، یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ روزے کی وجہ سے مینسز کیوں آتے ہیں، یہ تو کوئی ڈاکٹر بتائے گا، کوئی حکیم اور طبیب بتائے گا، لیکن اگر مینسز آ گئے ہیں تو خاتون اپنے پچھلے سال کی روٹین دیکھے کہ کن دنوں میں اور کتنے دن اس کو مینسز آتے تھے۔ اگر رمضان میں بھی مینسز شروع ہو گئے ہیں تو وہ اتنے دن ہی نماز چھوڑے گی جتنے پہلے چھوڑتی تھی، اور اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھنے شروع کر دے گی، اگرچہ خون آ بھی رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ پیڈ رکھے، وضو کرے اور نماز پڑھنی شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، ایک آج کے لاسٹ کالر جی محمد احمد قصور سے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محمد احمد صاحب فرمائیے۔ اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو پلاٹ ہم نے خریدے ہوئے ہیں تو ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ جو پلاٹ خریدے ہوئے ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ ہاں جی، پلاٹ ایسے پڑے ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں، کافی سالوں سے پڑے ہیں، کافی سالوں میں، لیکن ہمارے وہ ابھی ایسے وہ ایک سرمایہ کاری کے طور پہ پڑے ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد احمد صاحب کال کرنے کا۔ سر بھائی نے پلاٹ خریدے ہیں تجارت کی نظر سے کہ جب مہنگے ہوں گے بیچ لیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کئی سال ہو گئے، یعنی خود ہی نہیں نا بیچ رہے جی، تو ایسے پلاٹ جو آپ کی انویسٹمنٹ کے طور پر پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کی سیونگ ہے جی، اور اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، ہر سال بڑھ رہی ہے جی، تو سال کے بعد ان کی جو موجودہ ویلیو ہو اس کے مطابق اس کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک اور لائیو کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں کیونکہ یہ وہی ہمارے بھائی ہیں۔ ہاں جی، اچھا چلیں جی، اب ان کی قسمت میں نہیں ہے کال، تو کل صحیح وہ ڈراپ ہو گئی جی پھر سے، کیونکہ ہم نے ان کو لیوریج دیا تھا کہ اگر وہ شامل ہو ہی گئے ہیں تو ہم ان کو شامل۔ اینی وے جی، اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب کا، آپ شریک رہے سر، جزاک اللہ خیرا، اور ایک لمبا ہمارا سیشن ہوتا ہے جس میں ہم اپنی آڈینس سے، ہمارے چاہنے والوں سے، ہمارے ویور سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ۔ سر انشاءاللہ کل پھر محفل سجے گی، کل پھر ایسے اپنی ذمہ داری سر انجام دیں گے۔ لے جی، فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں بھی ضرور شامل کیجیے گا۔ پیغام ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر